Hi students, hello, कैसे हो? So now today once again we are in collisions. आप बोलोगे सर collision. मैं फिर से बोलूंगा collisions are an order of our life in which we must collide with the people. Sometimes the collisions may be on a positive note and sometimes on a negative note, but collisions are an order of our life. Now see, we have a collision given to us in a form of a device in our households. Do you identify that particular device? Which is here? Which is here? What is this particular device? You must have seen, must be in your homes. What is that device? A Newton cradle. Once again, Sir Newton is in our life, back again with a bang, with an article. What is it? That's a Newton cradle. मेरे पास भी थी, टूट गई. किसी स्टूडेंट ने गिफ्ट करी थी. शहजाद वाज माय वन ऑफ द स्टूडेंट, कनाडा में है अभी. But he gifted me that particular device, or somehow it got entangled and destroyed. But here it is, live and kicking. That's a Newton cradle. Now we will be focusing on the Newton cradle also, and a hell lot of more questions in the today's article. And then we are going to seal this article today, definitely 100%. Let's move upon to the article. And as I promised, the day is going to begin with the idea of the Newton cradle itself, in which we have identical set of balls. Repeat again, it's an identical set of balls. एक जैसी बॉल है, सबका मास सेम है, सबका रेडियस सेम है, सबका मास सेम है, सबका रेडियस सेम है, बिल्कुल स्पार्कलिंग स्टील बॉल्स लग रहे हैं, which are rigid, which are nearly perfectly rigid, and therefore the deformation is not there. Repeating once again, the deformation is not there, and since the deformation is not there, that means there is a high probability that the collisions which there will be among them will be elastic in nature. Yes my dear, reason elastic collisions are basically a collision in which we have an energy of kinetic behavior converting into deformation, and then from that deformation reconverting back to kinetic energy. But what if the objects does not get deformed? And what will that and when will that happen? If the objects are nearly rigid. And so we selected the steel balls for this idea, and because of which they are first of all not losing their sparkle. And suppose you seal this idea in a vacuum box and then start this oscillation, it might go on and on for a pretty longer decent amount of time. But what happens in the practical behavior, we see that when we just move one string away and release it, so it does oscillate for a particular amount of time, but then because of the damping air behavior, of course it will at some time, and very soon it is gonna come to in a state of rest, but not before enchanting you with its good oscillations, right? So this is what the Newton cradle is all about. That what exactly happens, what is the feeling basically? What is the feeling is that all these balls over there are 5 number of balls overall, but if I label this ball as the second, third and fourth, they seem to be stationary during the entire movement. There are 5 set of the balls, out of which I marked the 3 balls. There is the center 3 balls which appear to be stationary at every instant. So my question to you is, my friends, is it so? Is it so that these balls always remain stationary and they don't get the momentum at any particular instant? So what is the answer? Let's say we have these 3 balls over here like this, and another ball, let me make a colored ball over here of a different color, blue, but all of these are identical, and this is moved towards this with the speed of v0, and the collisions are elastic in nature. So what happens subsequently? Is, since all the masses are identical and it's a 1D collision, तो हमें तो theory में पता है sir that what happens, the second particle in a state of rest है, तो क्या होगा, 100% energy momentum transfer होगा कि पहला वाला पार्टिकल से रेस्ट पर आ जाएगा इंस्टेंटली, और सेकंड पार्टिकल सेम मोमेंटम से सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव ऑन करने लगेगा उसी पल या थोड़े से पल के बाद.
what happens, this red ball will immediately get a momentum and this ball will come in a state of rest. Let me sketch on a diagram for that. That this particular ball will acquire the momentum over there. This is a ball A, this is a ball B, and this is a ball C, and I'm talking about a ball A. And what happened to this particular ball which was striking this ball? This is a ball O, and this particular ball O immediately because of this comes in a state of rest. So this acquires a state of rest and the entire momentum is getting transferred to this. So what about other balls? The other balls, so let me construct this with the different colors. So this particular ball, let's say the ball B over here, this right now at this instant is in a state of rest. Now what is happening at the next instant? What is happening at the next instant is that this particular ball, that is a ball B. Now at the next instant, it gets the transfer of momentum and it starts moving with the speed of V0. While the previous ball, which was the ball A, now instantly comes in a state of rest. It comes in a state of rest, and of course, this particular ball, which is the O ball, of course, is also in a state of rest. Now comes the story of the ball C. So, do we have any other color left for this? Okay, let me pick this color. And this particular ball C, which whole this time was in a state of rest, and now this particular ball is going to get the momentum as mv0. Speed is going to become as v0, and while the trail of all other balls is going to be exactly like this, the trail of the first ball is also going to be exactly like this, and this becomes the behavior. So finally what happens? My dear, is that this ball, then the second ball, then the third ball, they now remain in a state of rest, and what about our fourth ball? It is now moving with a speed of v0, and all these events, 1, 2, 3. This was the first collision, then second collision, then third collision. One collision, second collision, third collision. This happened in a very flash of time. So our eye resolution is not so sharp, because of which we could have identified that particular frame rate. And so what we visualize basically is that this happened finally. That finally these balls came in a state of rest. That is a ball O, that is a ball A, that is a ball B, comes in a state of rest instantly, and the ball C has gathered the momentum. And that's exactly what happens. And when it is tied by a string, so it comes back because of that pendulum behavior, and this thing keeps on happening. So any instant, according to our eye behavior, our shutter eye behavior, where the frame rate is too fast, such as our eye is not able to resolve it and check that particular FPS, and so these all three balls always remain in a state of rest with respect to our frame of eye. If we slow down like this, extremely slow down this, and then watch it, then you will find the deformation occurring. This will deform, then transfer the momentum. This will deform, then transfer the momentum. That's going to happen, and this beautiful idea is supposed to be known as the Newton's cradle. And now you are very well versed with whatever happened in the front of you. You have understood what exactly happens. So, sir, what is the best way to deal such kind of problems? The best way to deal such kind of problems is to just mentally think like this, that they are not exactly pushing each other. So they are not exactly in contact, where the diagram always tends to show you that these are in contact. But then you remember, the contact force is the normal force, and the normal force is when the objects push each other. But these are not pushing. It's not possible, my dear. See, it's not possible that these are the two balls and I'm kept like this, side by side, and our eye fools us that they are in contact.
Yes or no? Yes, but then there is no force applied on this or on this, because of which they aren't compressing each other, so there is no contact force between them. So they're just a virtual contact, just a visible contact which you're feeling, but there's no a physical, according to physics, there is no contact over there, there's no contact force between them. And so what's the trick then? You just sketch them slightly away from each other, just slightly away from each other, and that will open up your concept and the way to deal the question. That means, of course, we know that this is what exactly is happening. So what better to just assume that there is a slight air gap between them. There in fact it is, because they're not compressing each other, so there will be a slight air gap between them. And so just imagine the questionnaire just like in this particular format, and will be the best way to analyze these kind of questions. A slight air gap between them, and such that it will be quite handsome enough for you to approach the question, that is, hits this, then it hits this, then it hits this, and so the concept will be glorified and clarified. Right? So this is what a Newton cradle is all about. Let's move on to the next one and see that what happens if you modify the Newton cradle. The modification of the Newton cradle basically means that the illustration in the last slide was that all the balls were basically identical in nature. Nature means they were made of the same material and their sizes were the same. Masses were the same, the volume were the same, the density were the same. They were identical in each and every respect, but now it's not so. Now it's not so. Now in this illustration, I have clearly shown in the diagram and animation that there is a slight air gap between them. A slight air gap. You can see that? Of course you can see that. Right? So now, moving on to that particular idea that there has to be an air gap between them because they are not exactly in contact. And so we have this question coming up in which we have these three balls of identical masses, but this projectile ball is not of identical mass. Repeating once again, this projectile ball is not of identical mass, so definitely it's not a snooker table, definitely we are not enjoying on a pool table. So what happens now? So there are two questions, one of which is that how many collisions will take place, one. And the question number two is that what will be the speed of all the balls when all the collisions have been taken place. So it's quite an interesting question. Let's focus on the question one by one. That what exactly the question is basically thinking of checking from our side. So as I said that how am I gonna approach this particular question is that I'm just going to imagine a slight air gap between them. Slight, ऐसा नहीं है कि आधा किलोमीटर दूर रख देंगे. A slight air gap between them, and I'm of course gonna label them. Let's say this is the ball A, this is the ball B, this is C, and this is my ball, which is the ball P. That's a projectile ball which is going to strike. Now, first of all, this ball strikes with this, and it is an elastic collision. So, I will like to use my results of V1 and V2. Of course, I can solve it there and then also like by CLM and NLC, but what for I have generated the results for. So, the V1 and V2, the velocities that is just after the collision in the condition when the second particle is in a state of rest, मतलब A अभी क्या है? Rest पर है. ऐसे हालात में V1 का जो expression होता है that's M1 minus M2 upon M1 plus M2 into U1, and the V2 expression goes as twice of M1 into U1 upon M1 plus of M2. Now looking into this results, I can very well find out what's happening over here for the V1 and V2, assuming that V1 will be the final speed of this ball and V2 the final speed of this particular ball. So let me check upon. So the value for the V1 will stand as equal to that's M1 minus of M2, so that's 2M minus of M upon 2M plus of M and into the initial speed that is V0 that works upon as M upon 3M, so it's V0 by 3 as the speed of the 2M block. And of course the formulas sometimes do help. Of course I am always endorsing this fact that you must memorize as less formulas as you can,
and the basics of the solving should always be adhered to, right? So getting on to the V2, देखो as a student हमें बिल्कुल ये easy लगता है कि हमें ना फॉर्मूले याद कर लेने चाहिए स्पॉन्टेनिटी के लिए, हमें हमेशा ऐसा लगता है, but then clutter is not good my friends, है ना, दिमाग में बहुत क्लटर आ जाता है. So उसको डीक्लटर करने के लिए एक ही तरीका है, बेसिक से स्टेप्स को याद रखें और 2-3 जो बेसिक आइडियाज होते हैं उनको कोशिश करें कि कभी कभी अपने आप को टेस्ट करें. जैसे कई बार आपने किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को फॉर्मूला बेस करा और अपनी क्विकनेस के लिए किसी और क्वेश्चन को उसी तरीके से बेसिक से करके देखें कि आप सीएलएम लगाएं, एनएलसी लगाएं, देखें, फास्टनेस को चेक करें. तो आपका माइंड अपने आप क्रॉस चेक करेगा कि यार कौन सा मेथड मेरे अकॉर्डिंगली फास्ट है, और फिर आपको मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा, आपका माइंड उस मेथड को अडैप्ट कर लेगा, राइट? इट्स एन अडैप्टेबिलिटी टेस्ट, लेकिन वो तभी हो पाएगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे. प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. नाउ आई एम प्रीचिंग और टीचिंग. सो V2, what is V2? Twice of m upon m1 plus m2. So that goes like this, twice of m upon 2m plus m, correct? That's m1 upon m1 plus m2. So we are getting this particular value as 2m1 है, so it should be 2 into 2m, है ना, 2 into 2m, क्योंकि m1 की वैल्यू 2m है. So this particular value becomes as 4v0 upon 3, right? So this value becomes 4v0 by 3. So ये पहले कॉलिजन का रिजल्ट हमें मिल चुका है. So after first collision what is going to happen कि ये जो प्रोजेक्टाइल वाली बॉल है, इसकी जो स्पीड हो जाएगी v1, that will be v0 upon 3, और जो ये वाली बॉल है, जो सेकंड वाली बॉल है, इसकी जो स्पीड हो जाएगी that is going to become as 4v0 upon 3 will be your condition, right? This is an instant of the first collision over here. कौन सा collision हुआ है? That's the first collision which has taken place. Now what is going to happen? Now this ball is faster than this, तो ये तो इसको कैच अप नहीं कर पाएगी, तो ये आगे जाएगी और ये इसके साथ कोलाइड करेगी. अब क्या है, ये दोनों बॉल्स आइडेंटिकल है, दिस बॉल एंड दिस बॉल आर आइडेंटिकल एंड इलास्टिक कोलिजन, तो क्या होता है, 100% ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम. सो नाउ इंस्टेंटली this ball, that's the ball A, is going to come in a state of rest. While it transfers the momentum to the ball B, and so the ball B over here starts moving with the same speed, that is 4v0 upon 3. So the speed of this particular ball is going to become 4v0 upon 3. While the other balls in consideration, this ball is still moving with the speed of v0 by 3, and this particular ball is in a state of rest. So this is the second collision. First collision किसके बीच में, प्रोजेक्टाइल और A के बीच में. Second collision किसके बीच में, A और B के बीच में. So that's your second collision on account. And see, all these collisions are going to happen really quick, so it will be the orderness of the collisions might be kind of an issue also, है ना? See, because these are happening real quick. Means what? Now what happened? This is going to collide with this. This is going to collide with this. Reason? Now this is moving and this is in a state of rest. At the same instant, this also collides with this. Because this is moving and this has come in a state of rest. So there are two collisions now taking place. अभी आपके ऊपर choice है कि आप किसको पहला collision, किसको बाद वाला collision ले लें. हम तो दोनों को साथ मान रहे हैं. So now I am making the third and the fourth collision simultaneous. So third and the fourth collision to be simultaneous. So I am writing that's the third collision and the fourth collision over there. So what is happening? ये इसके साथ कोलाइड करेगा, पर इसका मास 2m है और इसका मास m है, तो इसका मतलब ये पहले जैसी कंडीशन आ गई कि ये इसके साथ कोलाइड करेगा, और जो स्पीड आ रही थी वो कैसे आ रही थी, वो इस तरीके से आ रही थी. कैसे आ रही थी? इसकी स्पीड होगी जितनी इसकी पहले थी, कितनी थी, v0, उसकी 1/3, और इस वाले पार्टिकल की कितनी हो गई, जिसकी इतनी आई उसकी 4 टाइम्स, दैट इज 4 of v0 by 3. तो v0 by 3 किसकी पहली वाली स्पीड की, वो कैसे आई, जितनी उसकी प्री कॉलिजन थी उसकी 1/3 और दूसरे वाले की उसकी 4 गुना. अभी इस 2m ब्लॉक की प्री कॉलिजन स्पीड कितनी है, v0 by 3, तो पोस्ट कॉलिजन कितनी हो जाएगी, उसकी 1/3,
इसका मतलब जो 12 वाला ब्लॉक है उसकी जो स्पीड हो जाएगी दैट विल बिकम 1/3 ऑफ इट, दैट बिकम्स v0/9। और ये जो सेकेंड ब्लॉक है, दैट इज अ ब्लॉक ए, है ना, दैट इज अ ब्लॉक ए, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, इसकी 4 गुना, इसकी कितनी 4 गुना, इस वाले की v1 की कंपैरिजन में 4 गुना। तो v1 की कितनी है v0/9, तो इसकी कितनी हो जाएगी 4v0/9। सो द स्पीड फॉर दिस बिकम्स 4v0/9। ये होगी किससे कहानी, इन दोनों के कॉलिजन की, जिसको मैंने थर्ड कॉलिजन का नाम बोल दिया है। और अब बारी आती है उसी इंस्टेंट पे, उसी पल पे इन दोनों का भी कॉलिजन हो रहा है, पर ये दोनों आइडेंटिकल हैं। तो इसमें क्या होगा, 100% एनर्जी ट्रांसफर, मोमेंटम ट्रांसफर, बिकॉज इलास्टिक कॉलिजन आइडेंटिकल पार्टिकल्स का है, 1D है। तो ये वाला पार्टिकल फिर से क्या आ जाएगा, इंस्टेंट रेस्ट पे आ गया, कौन सा वाला, बी। और क्या हुआ सी के साथ, सी तो गया आगे, कितनी स्पीड से, 4v0/3 से। ये हो गया, मेरे ख्याल से मामला खत्म हो जाता है, हाँ या ना? नहीं सर, अब क्या हो रहा है, अब देखो और मजेदार कहानी हो रही है। अब क्या हो रहा है सर, कि ये वाला इससे कोलाइड करेगा, अभी ये वाला इससे कोलाइड नहीं कर सकता, अब ये वाला इससे कोलाइड नहीं कर सकता। अभी क्यों नहीं कर सकता सर, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी कम है, तो इसको कैच नहीं कर पाएगा। रिमेंबर u1 मस्ट बी मोर देन u2 टू कोलाइड, पर इसकी तो स्पीड ज्यादा है, इसकी तो कम है, तो ये तो कोलाइड नहीं कर सकता। लेकिन ये तो इससे कोलाइड कर सकता है क्योंकि ये तो रेस्ट पर है। तो अपना 5वां कॉलिजन क्रिएट हो जाता है दोस्त, द 5th कॉलिजन इज क्रिएटेड। उसमें ये वाला चले जा रहा है मस्ती से, कितने से, v0/9 से। ये कौन सा वाला, 2m वाला पार्टिकल है, पर ये दोनों तो अपने m वाले पार्टिकल हैं। तो फिर से इलास्टिक कॉलिजन, मोमेंटम ट्रांसफर, ये वाला रुक जाएगा, ये वाला मूव करेगा, तो ये वाला रुक गया, ये रेस्ट पर आ गया। और ये वाला कितनी स्पीड से मूव करेगा, सेम स्पीड से, सेम वेलोसिटी से, कितनी वेलोसिटी से, 4v0/9 से। और अपना चौथा वाला पार्टिकल भी है, चौथा वाला पार्टिकल जो है उसकी स्पीड कितनी है अभी, उसकी है 4v0/3। ये कौन सा कॉलिजन हो गया, 5 कॉलिजन हो गए। अब क्या होगा, अब बस समापन होने वाला है। कितना घंटों तक थोड़े सवाल बनता रहेगा, अभी समापन होने वाला है। क्या होने वाला है देखो, अब ये वाला इसको कोलाइड करेगा, ना सर बिल्कुल नहीं करने वाला। क्यों नहीं करने वाला, इट कैन नॉट कोलाइड सर, रीजन द स्पीड ऑफ दिस इज लेसर देन दिस, इज 4v0/9, दैट्स 4v0/3। वैसे 9 3 से ज्यादा होता है, पर डिनोमिनेटर में 4v0/9 इज लेस देन 4v0/3। सो ये इसके साथ कैचअप नहीं कर पाएगा, तो पीछे देखते हैं क्या हो रहा है। ये सब कोलाइड करेगा, ये कितना करेगा, तो रेस्ट पर है, तो ये सब कोलाइड करेगा, यस सर। ये सब कब कोलाइड करेगा सर, क्योंकि रेस्ट पर है, ओके। फिर से कहानी शुरुआत होती है, इसका मास कितना है 2m और इसका मास कितना है, ये फिर से वापस इनिशियल पे आ जाता है, फिर से एक बार इससे कोलाइड करेगा, पर इस बार उसकी स्पीड जो है वो ना v0 है ना v0/3 है। अब कितनी है, v0/9। तो प्रोजेक्टाइल की स्पीड कितनी है, v0/9। तो पोस्ट कॉलिजन कितनी हो जाएगी, उसकी 1/3, उसकी कितनी 1/3, तो 1/3 होगी तो सर फिर फाइनल रिजल्ट हमारे हिस्से आने वाला है। अब ये वाला जो ब्लॉक है सर, इसकी जो स्पीड है, जो 2m वाला ब्लॉक है, इसकी प्री कॉलिजन की 1/3 हो जाएगी। तो v0/9 की 1/3 कितनी होगी बोलो, v0/27 आ गई सर, कितनी आ गई, v0/27 आ गई। और जो टारगेट है उसकी कितनी आएगी, टारगेट की कितनी आएगी सर, इसकी 4 गुना आ जाती है, कितनी आ जाती है, इसकी 4 गुना। तो 4 टाइम्स ऑफ दिस कितना हो गया, दैट्स 4v0/27। वेरी गुड, 4v0/27। और आगे वाले पार्टिकल्स का क्या हाल है सर, ये जो पार्टिकल है इसकी जो स्पीड चल रही है वो चल रही है सर 4v0/9। और सर उसके आगे वाला जो पार्टिकल है उसकी भी स्पीड कुछ ना कुछ तो चल रही है, कितनी चल रही है सर, 4v0/3। अब कौन किससे कोलाइड करेगा, कोई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखो इसकी स्पीड इससे कम है, ये v0/27 या 4v0/27, तो ये जो इससे कोलाइड नहीं करेगा क्योंकि इसकी स्पीड कम है। अब इसको देखो तो इसकी कम है, इसके मुकाबले 1/3 है क्योंकि इसकी 4v0/9 है, इसकी 1/3 है उससे, तो ये इससे कोलाइड नहीं कर सकता। वेरी गुड। अब ये वाला इससे कोलाइड, वो तो बिल्कुल नहीं कर सकता क्योंकि इसकी फिर से इससे 1/3 कम है, तो कोई किसी से कोलाइड नहीं करेगा। नो फर्दर collisions are going to take place, and therefore that's the end of the question, and that's what the modified Newton cradle exists.
So we understood how to deal with the questions of the cradle, and for that easiness to be coming into the solving, first of all we should assume an air gap between them, slight air gap, ज़्यादा मत करना फिर friction आ रहेगी है ना. So slight air gap between them such that now we are able to focus upon that how many exact collisions are there, and we are not fooled by our visuals. So the total number of collisions, they end up as 6, and we can see that the final velocities are listed over there. So beautiful question, a beautiful question. It's one of my personal very good favorite question. It's not about favoritism goes like it's a tougher question or an easy question. It's like it actually tests you. It actually tests you in the practical nature also, and it's a depth question where how to deal with the cradle of the masses. Okay, coming on to the next one, and I've labeled this particular question. अगर आप अपने आप करते हैं तैयारियां तो आपको ये क्वेश्चन एक नॉर्मलाइज क्वेश्चन लगता है, जो मतलब एक कॉलिजन का क्वेश्चन है, आ गया हमारे सर पैर पे या फिर मेरे थ्रू पढ़ते हैं. सो आई हैव चैनलाइज्ड द क्वेश्चन एज एन circular collision, as a circular collisions. And what is happening over there, we have a tube over here, and it's a horizontal tube. Okay, it's kept on a horizontal plane, है ना, ऐसे ऐसे इस horizontal plane पे इस तरीके से रखी हुई है. It's a horizontal tube, and then you have two balls, identical balls है, दोनों equal है, दोनों के दोनों, और बिल्कुल diametrically end पर रखी हुई है. दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल दिख रहा है ऐसा. ओके, अब क्या बोला है, t equal to 0 पे. इस सवाल के दो रूप है, मैं दोनों रूप आपको बताऊंगा. t equal to 0 पे a is projected along the groove, तो इसको along the groove आपने प्रोजेक्ट कर दिया. देखा, करा आपने, सब बिल्कुल करा. ओके, वेरी गुड. अभी प्रोजेक्ट हो गई इधर, कितनी स्पीड से मान लेते हैं अपना v0 मान लेते हैं. ठीक है, v0 स्पीड से इसको कर दिया. अब u भी बोल सकते हैं उसको, जैसे आपका दिल करे. गुड सर, तो u लिख लेते हैं, है ना, ये इजी रहेगा आपको थोड़ा सा ध्यान लगाने में. ये आगे चला गया, पीछे चला गया, कोई नहीं कोई नहीं. तो हम ऐसा करते हैं कि इसको u ही लिख लेते हैं. क्यों मैं बताऊंगा, अभी आपको समझ में आएगा कि मैंने इसको u ही क्यों लिया है. आपके लिए मैं तो कर लूंगा, आपको भी करना है ना, इसलिए. एंड उसको प्रोजेक्ट कर दिया गया, और इट फर्स्ट इम्पिंजेस, मतलब ये इसको जाके हिट करेगी. लैंग्वेज तो आप समझते हैं. ऑन द बी एट अ टाइम t equal to t1. सो एक समय के बाद ये जाके इसको हिट करेगी. अब देखो, ये तो स्टेशनरी है, तो सारा दारोमदार तो इसके ऊपर है, तो ये वाली बॉल मूव करेगी, दिस वाला मूव, एंड इज गोइंग टू मूव अलोंग दिस पाथ एंड रीच ओवर हियर. अब हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है और फ्रिक्शन है नहीं, तो स्पीड तो कोई बदलने वाला है नहीं. देयर इज नो फोर्स, but the speed is not going to change. So when it just impinges on this, इसके ऊपर जब वो आके impinge करेगी तो इसकी स्पीड सेम होगी. The speed will be exactly the same. And then they are identical balls, and look at what is the restitution coefficient, that's E. So not an elastic collision. Elastic collision होता तो क्या होता, ये यहां रुक जाती और ये नीचे आ जाती, और फिर ये पूरा घूम के वापस आके इसको हिट करती, तो फिर ये बॉल वहां रह जाती और फिर वो पहली वाली बॉल इधर आ जाती. ये तो तब होता है जब इलास्टिक कोलिजन है, पर ये इलास्टिक कोलिजन नहीं है. ठीक है, अभी कैसा कोलिजन है, इनइलास्टिक. तो क्या होगा, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दोनों की स्पीड आएंगी, इसकी v1 इसकी v2. ठीक है ना. अभी फिलहाल इसकी स्पीड कितनी है, इस वाले की स्पीड कितनी है, जितनी स्पीड से जा रहा है इतनी स्पीड कितनी है, u है. और फिर अब दोनों की स्पीड आ रही है v1 एंड v2. अब हम E लगा लेते हैं, क्या लगा लेते हैं, E. सो E कितना हो गया, v2 माइनस ऑफ v1 अपॉन u माइनस ऑफ 0. समझेगा ना, u क्यों रखा था, सीधा सीधा u माइनस ऑफ 0. सेकेंड वाला रेस्ट पर है. वेरी गुड. सो व्हाट इज v2 माइनस v1, दैट्स द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, और वो कितना है, दैट इज E टाइम्स ऑफ u. वेरी गुड. अब हो सकता है ये वाली बॉल पीछे आ जाए, वो बॉल आगे चले जाए, समझ आ रही है. और फिर ये तो पहला कोलिजन हो गया, कब, t इक्वल टू t1 पे. और फिर क्या हो रहा है कि कुछ और समय जाएगा और फिर ये बॉल दोबारा कोलाइड करेंगे, और कैसे, कहां, कब, कैसे, वो अपने को सोचना पड़ेगा. तो मान लो ये बॉल पीछे आ गई, मान लो ये बॉल पीछे आ गई टकरा के, और ये आगे गई, मान लो. चेक करें वैसे v1 और v2 बने क्या करें, इंडिविजुअल अगर आप चेक करना चाहें तो बस फॉर्मूले. तो v1 और v2 का फॉर्मूला क्या होता है, चेक करते हैं. ये बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, आंसर तो मैं जल्दी निकाल दूंगा, समझाने के लिए कर रहा हूं. तो फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज m1 माइनस em2, ठीक है ना, अपॉन m1
प्लस m2 इंटू u1, ठीक है ना, दैट इज u1। और दूसरे वाले का कितना होता है, दैट इज m1 इंटू 1 प्लस e अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है भाई। तो अपॉन m1 प्लस ऑफ m2, ठीक है, ये होता है। सो ये दोनों फॉर्मुलेस है, m1 माइनस e m2 एंड ऑल। अब e की वैल्यू डेफिनेटली 1 से कम आएगी, e की वैल्यू डेफिनेटली कम आएगी, तो v1 जो आएगा वो कितना आएगा, मतलब e की वैल्यू कोई वैल्यू मान के देख लो, e की वैल्यू को वैल्यू मान के देख लो, मासेस तो आइडेंटिकल है दोनों, तो ऊपर नीचे तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये टेक्निकली कितना आएगा 1 माइनस e अपॉन 2 इंटू यू, करा हुआ क्वेश्चन हमने पहले। और इसका कितना आएगा 1 प्लस e अपॉन 2 इंटू यू, ये आ जाएगा, है कि नहीं, सही है, यस सर। तो दोनों आगे जाएंगे, दोनों आगे जाएंगे, क्योंकि दोनों की स्पीड प्लस आ रही है, क्योंकि e की वैल्यू लेस देन हाफ होगी, लेस देन 1 होगी, सॉरी लेस देन 1 होगी, तो दोनों v1 v2 आगे आ रहे हैं पॉजिटिव, क्योंकि u हमने इस तरह पॉजिटिव लिया, इधर वाला जाते हुए इधर, ठीक है। तो v1 और v2 को इधर ही आएंगे, लेकिन एक फास्ट आएगा, एक स्लो आएगा, एक फास्ट आएगा, एक स्लो आएगा। तो जो पहली वाली बॉल है वो फास्टर मूव करेगी, दूसरी वाली स्लो मूव करेगी। तो हो सकता है कि जो बॉल 1 और बॉल 2 है, ये बॉल ए और बॉल बी जो है सेकंड वाली, वो फास्टर मूव कर रही है, तो वो ऐसे चक्कर काट के इधर आ रही हो और ये वाली अभी इधर ही जा रही हो, तो हो सकता है ये दोनों बॉल दोबारा कहीं यहां पे कोलाइड करें, ये बॉल दोबारा कहां करे, कोलाइड करे, दोनों एक ही जगह से शुरू हुई, दोनों एक ही जगह से शुरू हुई, और दोनों की जब दोबारा कोलिजन हो रही है, देखो दोनों की जब दोबारा कोलिजन हो रही है तो क्या हो रहा है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दोनों एक ही जगह थी, दोनों एक ही जगह थी। अब मान लो कि ये वाली बॉल सिर्फ यहां पहुंची, तो बी वाली तो फास्टर थी, तो वो पूरा चक्कर काट के फिर एक्स्ट्रा यहां पे पहुंची होगी। ये ऐसा मान लो कि बी वाली ए वाली को देखो, ए वाली सिर्फ यहां तक पहुंची, मान लो इधर पहुंची, तो बी वाली तो पहले ही आ गई थी, तो वो पूरा यहां जाके फिर थोड़ा एक्स्ट्रा चक्कर भी काटी होगी। इसका मतलब बी वाली ने, क्योंकि वो फास्टर है, तो दोबारा कोलाइड होगी, उसके रिस्पेक्ट में एक एक्स्ट्रा चक्कर काटा होगा। इसने तो ए वाली ने तो ए वाली जो बॉल है उसने तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करा ही होगा, कितना करा होगा, मान लो कि ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल करा, इतना एंगुलर डिस्टेंस, इसने उतना 2 पाई एक्स्ट्रा करा होगा। इसका मतलब इसके रिलेटिव जब दूसरा पोजीशन हुआ, तो जो रिलेटिव डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 2 पाई आर। एक ने थोड़ा और करा, मतलब इतना और करा डिस्टेंस, पर बी वाले ने कितना करा, ये पूरा और इतना, तभी तो कोलाइड करेगी दोबारा। तो क्या करें, अब टाइम निकालते हैं, कौन सा टाइम, उतना टाइम जो फर्स्ट से सेकंड कोलिजन के बीच का है, उस टाइम को स्मॉल टी रख लेना। व्हाट इज दैट टाइम, दैट्स अ टाइम इंटरवल, डेल्टा टी रख लेना, डेल्टा टी दैट्स बिटवीन द फर्स्ट कोलिजन एंड सेकंड कोलिजन। सो कैसे निकालोगे, डिस्टेंस कितना, रिलेटिव डिस्टेंस, क्या लिखा, रिलेटिव डिस्टेंस, एक ने दूसरे का रिलेटिव कितना करा, एक चक्कर एक्स्ट्रा लगाया, तो रिलेटिव स्पीड यूज करनी पड़ेगी, एब्सोल्यूट नहीं देख रहे, एब्सोल्यूट नहीं देख रहे कि पहले ने कितना करा, दूसरे ने कितना करा, एक दूसरे का रिलेटिव देख रहे हैं, क्योंकि कोलिजन तो रिलेटिव ही है ना। तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, 2 पाई आर अपॉन रिलेटिव स्पीड, वो तो पहले से है v2 माइनस v1। ये तो आपको देखना पड़ेगा कि v1 स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, v2 से कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, इंटर डेल्टा टी, और फिर निकालना पड़ेगा आपको। तो ये ज्यादा सौखा तरीका है, क्या चेक करा हमने, रिलेटिव डिस्टेंस कितना है 2 पाई और रिलेटिव स्पीड कितनी v2 माइनस v1, और v2 माइनस v1 है कितना, e इंटू यू, सो दैट इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन e इंटू यू, दैट्स इट, डेल्टा टी। अब आप यहां पे कैसे गलती कर सकते हैं, आप यहां पे गलती कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन ने बोला है, इट अगेन हिट्स एट दैट टाइम t2। अब आप इस टाइम को t2 लेने, गलत तो हो जाएगा, ये टाइम t2 नहीं है, t2 क्या है, जो शुरू से टाइम है यहां तक का। अब जो शुरू से टाइम यहां तक का है, मतलब ये जो टाइम इंस्टेंट है वो कितना है, t इक्वल टू t2। इसका मतलब डेल्टा टी का मतलब क्या हुआ, दैट इज t2 माइनस ऑफ t1, क्योंकि पहला पोजीशन कब हुआ था, t1 पे, और अगला पोजीशन कब हो रहा है, t2 पे। सो डेल्टा टी कितना है, t2 माइनस t1। यहां आप गलती कर सकते थे कि आप डेल्टा टी को t2 मान लेते, समझ में आ रही है, वो क्या है, टाइम इंटरवल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड कोलिजन। अब इस पर्टिकुलर वैल्यू को आप t2 माइनस t1 रख दीजिए, और अब क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया है t2 अपॉन t1, तो पहले t1 कितना था वो लिख लो, तो t1 तो बहुत आसान था, t1 कितना था, t1 था एज इक्वल टू पाई इंटू आर, क्योंकि सारा डिस्टेंस इस बॉल ने कवर करा था,
और किससे, अपनी स्पीड से, अपनी स्पीड उसकी कितनी थी, u। सेकेंड बॉल तो मूव ही नहीं करी थी तो, सो t1 की वैल्यू कितनी आ गई, दैट बिकम्स एज इक्वल टू पाई इंटू आर अपॉन यू। अब दोनों को डिवाइड कर लो, सो ऑन डिवाइडिंग यू गेट t2 माइनस t1 अपॉन t1, एज दोनों को डिवाइड करो कितना बन गया, पाई आर अपॉन यू, पाई आर अपॉन यू कैंसिल हो गया, दैट बिकम 2 अपॉन ई। कितना हो गया, 2 अपॉन ई। अब कई क्वेश्चन ऐसे, मैंने बोला 2 क्वेश्चन बताऊंगा, मैंने बोला था 2 क्वेश्चन बताऊंगा। अब एक क्वेश्चन आप देखना, कहीं पे किसी किताब में ऐसा होगा कि पहला पोजीशन हुआ t1 सेकेंड्स में और सेकेंड पोजीशन उसके बाद t2 सेकेंड्स में, लैंग्वेज में ऐसा लिखा होगा, तो तब t1 अपॉन t2 सीधा आंसर 2 अपॉन ई आ जाएगा, t2 अपॉन t1 सीधा 2 अपॉन ई आ जाएगा, क्योंकि t1 कौन सा टाइम टेबल होगा उसके अंदर, जो पहले पोजीशन का, और t2 कौन सा होगा, जो पहले से दूसरे पोजीशन के बीच का। यहां पे आपको डिफरेंस देना, क्वेश्चन समझ में आ गया। लैंग्वेज में कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन हमने करा हुआ होता है और थोड़ा सा ट्विस्टेड आ जाता है, थोड़ा सा लैंग्वेज में, लैंग्वेज ट्विस्ट करी थोड़ी, बस समझ गया बात को, समझ गया ना बात को। सो इट बिकम t2 अपॉन t1 एंड -1 माइनस उधर चला जाएगा, दैट बिकम्स 1 प्लस 2 अपॉन ई। सो दिस वर्क्स एज e प्लस 2 अपॉन ई एज योर रिजल्ट टू द क्वेश्चन, राइट। चलो बात समझ में आ जाती है हमारे, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। और ये लेंथ ऑफ द क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ये पहला टाइम, ये दूसरा टाइम, और कैसे, सीधा ई लगाया, रिलेटिव वेलोसिटी है, और अगला पोजीशन होने में कितना डिस्टेंस है, 2 पर यार रिलेटिव अपॉन v2 माइनस v1, उससे आपका टाइम इंटरवल आ गया फर्स्ट और सेकंड के बीच में, बस वहां से क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। समझाने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है क्योंकि आपके दिमाग में बिठानी होती है बात को, करने में क्वेश्चन उतना समय नहीं लगता है, 1 मिनट से ऊपर ये क्वेश्चन आपका कंज्यूम नहीं करेगा वंस यू हैव ऑलरेडी अचीव द क्वेश्चन डिटेलिंग्स, राइट। जी देखो, अप्रोच टू द क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे जीवन में, अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज के लिए। प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसे ही होता है कि हमें अप्रोच करना बहुत जरूरी होता है कि किस तरीके से किस टास्क को कैसे अप्रोच करें, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। उसी तरीके से क्वेश्चन की अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई बार क्वेश्चन आपको इस तरीके से फीचर आउट करता है कि आपको टेस्ट करे, आपकी एबिलिटी को टेस्ट करे कि आप सोच पाते हैं कि नहीं क्वेश्चन में, या फिर ऊपर ऊपर से क्वेश्चन को खत्म करके निकल जाते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक इनटू द क्वेश्चन एस्पेक्ट्स। जस्ट लाइक दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन व्हिच इज इन फ्रंट ऑफ यू, क्या होगा कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैं नहीं बोल रहा कि आप समझदार हैं, बेवकूफ हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स एक गलती कर जाते हैं, छोटी सी गलती कर जाएंगे, इंटरप्रिटेशन की गलती है, छोटी सी, बस छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी, पर आंसर धमाकेदार डिफरेंट हो जाएगा, है ना। जैसे two identical balls A and B are released from the position shown in the figure. They collide elastically with each other on the horizontal portion. देखो मामला क्या है, यहां से बॉल रिलीज हुई, ये नीचे पहुंचेगी कभी ना कभी, ये नीचे पहुंचेगी कभी ना कभी। मैं कभी ना कभी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दोनों सेम इंस्टेंट पे नीचे ना पहुंचेंगे, नहीं क्योंकि हाइट डिफरेंट है, तो दोनों का समय अलग अलग लगेगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा बाद में पहुंचेगी, थोड़ा पहले पहुंच जाएगी, पर अल्टीमेटली दोनों नीचे पहुंच गए, ठीक है। अल्टीमेटली दोनों नीचे पहुंच गए, तो ये इधर पहुंच गई और ये वाली बॉल इधर पहुंच गई, और ये थोड़ा इधर ज्यादा आगे होगी, और अब जाके दोनों क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, दोनों कोलाइड करेंगे, ठीक है। कहां पे, हॉरिजॉन्टल पोर्शन में, ये क्वेश्चन की देन है, क्वेश्चन ने बोला है, और कॉलिजन इलास्टिक होगी। चलो अब कई बार ना हम जैसे बाबा के पास जाते हैं, बाबा जी के पास जाते हैं और एस्ट्रोलॉजी के पास जाते हैं, या टीवी में एस्ट्रोलॉजी देखते हैं। मैं नहीं देखता, पहले देखता था, बिल्कुल नहीं देखता मैं। तो हम क्या सोचते हैं कि जब वो हमें कुछ क्वेश्चन देंगे, मतलब क्वेश्चन कहां से आगे, बाबा जी हमें क्वेश्चन थोड़ी देंगे, क्वेश्चन तो मैं दूंगा, क्वेश्चन एग्जाम में देगा वो। बाबा जी हमें जैसे ना बताएंगे कि आज हमारे लिए क्या अच्छा होने वाला है, इस राशि के लिए क्या अच्छा है, तो हम अच्छी बातें सुनना पसंद करते हैं, इजी बातें सुनना पसंद करते हैं। डिफिकल्ट, आज ऐसा हो जाएगा आपके जीवन में, मैंने कभी सुना नहीं कि कोई बोल रहा होता है ऐसा, तो मतलब बोली सारी बातें मोस्टली अच्छी आती हैं, तो हमें आदत पड़ जाती है कि अच्छा सुनने की और इजी बातें सुनने की। तो इजी बातें ना हम बहुत, हमारे इंद्रियां एक्टिवेट हो जाती है, इजी, और कुछ बातें रट के रखी होती है हमने। इलास्टिक कॉलिजन में वेलोसिटी होती है एक सेम, ओहो वेरी गुड, होती है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो होगा यहाँ पे ये आ रही है स्पीड से, ये आ रही है स्पीड से, इसको u1 लिख लेते हैं, इसको u2 लिख लेते हैं, दोनों का मास सेम है, दोनों आइडेंटिकल बॉल्स है, क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। पर कितनी थी चेक करो, वो तो बहुत आसान है सर, √2g × 4h इसकी होगी, तो u1 हो गया सर √2g × 4h, और u2 हो गया सर √2g × h, इतना हो गया सर, इतना आसान है सर। अब ये एक्सचेंज हो गई,
अब सेम होने के बाद क्या होगा कि इसकी सर हो जाएगी U1, इस वाली U1, और इसकी इधर चली जाएगी, इसकी हो जाएगी U2। तो सर मामला पलट जाएगा, मामला पलट जाएगा। और क्या होगा सर कि अब ये जाएगी बॉल U2 से इधर, मतलब इसकी स्पीड होगी सर अंडर रूट ऑफ कितनी 2gh, और सर इस वाली की स्पीड होगी अंडर रूट ऑफ 8gh। मजेदार सर, यही क्वेश्चन था। देखो सर कर लिया हमने, बिल्कुल बेटा बिल्कुल कर लिया आपने, आंसर भी तो निकाल देगा सर। ये बॉल अब जाएगी चढ़ेगी, चढ़ाइयां चढ़ेगी ऊपर, ये भी सर ऊपर जाएगी, चढ़ाइयां चढ़ेगी सर ऊपर। तो पूछा क्या है, with the ratio of the height attained by A and B after collision, collision के पश्चात, collision के पश्चात, after math of the collision, what is the final ratio of the height gain? सर ये क्या क्वेश्चन हुआ, ये वो क्वेश्चन हुआ सर। देखो अब सर ये इधर चली जाएगी, इसकी स्पीड इसको मिल गई, अब ये साइड पे चली जाएगी और ये सब 4h पे चली जाएगी, खत्म क्वेश्चन। तो 1:4 आंसर आ जाएगा दोबारा से। सर देखो ये 4h से आएगी, इसकी स्पीड इसको मिल गई तो ये 4h पे चली जाएगी, और सर ये इधर आई थी h हाइट से, इसकी स्पीड इसको मिल गई तो h पे चली जाएगी। तो हो गया सर, रिवर्स हो गया आंसर, 1:4 आ गया आंसर। चलिए 4:1 था, अब ये वाली 1 में जाएगी और ये वाली नहीं, ये वाली 4h से इसको जाएगी तो ये वाली 4h पे चली जाएगी, और सर ये वाली h पे चली जाएगी, बस खत्म क्वेश्चन ओवर। बेटा बेटा बहुत बढ़िया, इसके लिए तो बहुत बढ़िया। ये तो भाई गई ऊपर कितने हाइट पे, h हाइट पे गई, और वहां पे जाके इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी स्पीड, 0 मीटर पर सेकंड होगी इसकी। पर इसके साथ क्या होगा, यहां तो 4h हाइट ही नहीं है, तो ये 4h ऊपर जाएगी कैसे, समझ आ रही है भाई। इधर तो 4h थी हाइट, इधर तो है ही नहीं, प्लेन ही खा गया। अच्छा अपन तो कहां पे कॉन्सेंट्रेट करके बैठे थे कि वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी, बिल्कुल सही था, पर आधा था, आगे भी तो अप्रोच है क्वेश्चन की। तो अब ये वाली जो पर्टिकुलर बॉल है ये यहां तक पहुंचेगी, फिर इसके नीचे से जमीन खिसक जाएगी, जमीन खिसक गई इसके नीचे से, तो एयरबॉर्न हो जाएगी, स्टंट करेगी, स्टंट प्रोजेक्टाइल हो जाएगी करेक्ट फिजिकल लैंग्वेज में। अब यहां पे इसकी स्पीड कितनी आएगी वो निकालो पहले, यहां पे कितनी थी जाते समय √8gh, अब h हाइट ऊपर पहुंच गई, कितनी स्पीड होगी, यहां पे कितनी है, हाफ m इंटू वी स्क्वायर, कितनी है 8gh है कि नहीं, और कितनी हाइट पे पहुंची mgh पे, तो इसमें से कुछ एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी, बाकी किस में रहेगी काइनेटिक। सो प्लस ऑफ हाफ mv स्क्वायर, जितनी यहां पे स्पीड बचेगी उसको v लिख लेते हैं, है कि नहीं, बिल्कुल सही सर। काइनेटिक में से हल्की फुल्की पोटेंशियल कम हो गई, mgh कम हो गई, और बाकी काइनेटिक के रूप में वापस मिल गई। अब देखो ये हो गया 4, तो 4mgh माइनस mgh 3mgh, सो 3mgh इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर, तो ये m और m कैंसिल हो गया, तो v कितना आ गया √6gh, ये स्पीड आ गई। तो इस जगह पे इसकी स्पीड कितनी आ गई √6gh, ये इसकी स्पीड होगी √6gh। और एंगल का उपयोग अभी तक तो हुआ नहीं था, अभी तक तो हुआ नहीं था, अब होगा। कितना एंगल है 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना है 60 डिग्री। अभी क्या बन जाएगी प्रोजेक्टाइल, तो अब इसका पार्ट बनाइए, अभी प्रोजेक्टाइल तो बन गया, अब इसका पार्ट बनाइए, तो इसका जो पार्ट बन रहा है वो कुछ ऐसे बनेगा, फिर वहां से नीचे आएगी। पर अपने को तो क्या देखना है, हाइट, कौन सी हाइट, मैक्सिमम हाइट, तो ये आएगी इस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट, दैट इज h। क्या आप इस h को निकाल सकते हैं, बिल्कुल फॉर्मूला है, बिल्कुल ऐसा क्या है, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ट्वाइस ऑफ g, दैट्स द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन सर। ओके देन प्लेस द वैल्यू, v स्क्वायर कितनी होगी 6gh, और साइन कितना 60, साइन 60 कितना होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3/2 का स्क्वायर 3/4, ये हो गया 3, ये हो गया g कैंसिल, ये आ गया 9h/4। अभी इसकी मैक्सिमम हाइट है ना सर, साथ में ये भी तो है, ये h भी तो है, और ये पूरी हाइट आ जाएगी, दैट इज सपोज्ड टू बी अ कंप्लीट h2। सो व्हाट इज h2 इक्वल टू, दैट बिकम्स h, ये वाली h वो कितनी है 9h/4,
एंड प्लस दिस h, ये वाली कितनी होगी, दैट बिकम 13h/4। ये क्या आ गई, H2 आ गई। हो गया सवाल आपका खत्म? बिल्कुल सर। H1 कितनी आ रही थी, ये फाइनल, वो तो H आ रही थी। सो व्हाट इज द रिजल्ट, दैट इज H1/H2, दैट बिकम्स H/13h/4। ये H और H कैंसल, सो द रिजल्ट बिकम्स 4:13 एज योर रिजल्ट, एंड नॉट व्हाट यू वुड हैव एक्सपेक्टेड एज 1:4। ठीक है, डन सर, एक्सेलेंट सर, मजा आया क्वेश्चन में सर। वैसे सर आपने इस असाइनमेंट में भी दिया था, आपने इसको क्वेश्चन को हमने करके देखा था, हमने तो 1:4 लिखा था। नहीं सर, एक आधा बच्चा बोलेगा सर मैंने तो सर ऐसे ही लिखा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप सही रास्ते पर हो, बाकी भी सही रास्ते पर है, पर बीच में थोड़ा डक गए, कोई बात नहीं, मैंने सही कर दिया, आपको करेक्ट कर दिया, समझा दिया कि सारे क्वेश्चन में और चैप्टर्स की भी एप्लीकेशन आती है। आपको याद होगा क्या सर, जब मैंने लिखा था कि क्वेश्चंस कोलिजन के किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, तो मैंने आपको 3 स्टेप लिखवाए थे, 3। पहला सीएलएम, ठीक है, सीएलएम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और सेकंड क्या लिखवाया था, एनएलसी न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। तीसरा बोला था एडिशनल इन्फो जो कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन, पल टू पल, एग्जामिनर टू एग्जामिनेशन वेरी करेगी। जैसे कि यहां पे एडिशनल इन्फो क्या है कि प्रोजेक्टाइल बन गया, तो एक क्वेश्चन किसी और चैप्टर में चला गया, साथ में कोलिजन का तो था ही, साथ में प्रोजेक्टाइल भी ऐड हो गया, क्वेश्चन की मात्रा लेवल बढ़ गया हल्का सा, हमारी एबिलिटी टेस्ट हो गई, हम बेहतर इंजीनियर बन जाएंगे, है कि नहीं? हाँ जी सर, हाँ जी सर। अगला क्वेश्चन सर। हाँ जी सर, ये मेरे स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं, हाँ जी सर, अच्छा लगता है सुनने में। ओके, 2 masses m1 = 2 kg and m2 = 5 kg और मूविंग ऑन अ डायरेक्शनलेस सरफेस। ये क्या होता है डायरेक्शनलेस सरफेस? फ्रिक्शनलेस सरफेस। ये डीटीपी वाले भी कभी कभी क्या कर लेते हैं यार, फ्रिक्शनलेस सरफेस, डायरेक्शनलेस सरफेस बोल रहे हैं, सरफेस कभी डायरेक्शन, वो भी बोल दो सही है, वो इसका भी बता देंगे डायरेक्शनलेस, जिसकी डायरेक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस सरफेस विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड एंड 3 मीटर पर सेकंड। इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड और इसकी कितनी, 3 मीटर पर सेकंड। ओके, एंड ये इसके आगे है, दिख रहा है, बताने की क्या जरूरत है। एन आइडियल स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट 1120, के की वैल्यू क्या बना अपने को, 1120 न्यूटन पर मीटर। इट अटैच्ड टू द बैक साइड ऑफ M2, लगा दी भाई, मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग विल बी। अब देखो ये पुराने कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट होने चाहिए, लैंग्वेज आपके दिमाग में आनी चाहिए और वहीं से क्वेश्चन बनेगा। द मैक्सिमम कंप्रेशन पूछ रहा है। अब मैक्सिमम कंप्रेशन क्या है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। भाई स्प्रिंग दबेगी, अब स्प्रिंग दबेगी तो क्या होगा, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा इसकी कम है, टाइम पे इसको स्प्रिंग को दबाएगा ना, इसके रिलेटिव ये फास्ट मूव कर रहे तो स्प्रिंग को दबाएगा, कंप्रेस करेगा। जब कंप्रेस करेगा तो क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स आएगी, है ना, देखो ऐसे होगा, ऐसे। अब स्प्रिंग दबनी शुरू हो जाएगी, कंप्रेस होनी शुरू हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स आएगी इसके ऊपर पीछे और इसके ऊपर इधर, क्योंकि आप इसको दबा रहे हो, बेचारी क्या करेगी, ऑपोजिट फोर्स लगाएगी, तो इसकी स्पीड क्या करेगी, कम होनी शुरू हो जाएगी, मतलब V1 क्या होना, कम होना शुरू हो जाएगा और ये बढ़ना शुरू हो जाएगा और स्प्रिंग कंप्रेस होती रहेगी। तो आपको याद आ जाएगा इतने से तो कि सर ने बताया हुआ है कि एट द इंस्टेंट ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन और एट द इंस्टेंट ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, इन दोनों की स्पीड क्या होगी, सेम होगी। आ रही बात समझ में, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन या मैक्सिमम कंप्रेशन, उस समय क्या होता है, दोनों एक दूसरे बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, इसका मतलब उनकी स्पीड क्या होती है, कॉमन होती है। सो मैक्सिमम कंप्रेशन इज एन आइडियलिस्टिक कंडीशन ऑफ द मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। द स्प्रिंग इज मैक्सिमम डिफॉर्म्ड and at the instant of the maximum deformation the particle must be having the same speed, and if you know that, and then the question is able to be completed. Second, see, it's a collision, इससे कोलाइड करा, हमेशा बॉल नहीं कोलाइड करती, और भी चीजें कोलाइड कर सकती हैं, तो इससे कोलाइड करा तो हर कोलिजन में CLM लगेगा। रीजन, एक्सटर्नल फोर्स गायब है, क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इस वजह से एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इसका मतलब आइसोलेटेड सिस्टम है और इसकी वजह से CLM लगाना अलाउड है। लगाओ फिर, कहां से कहां तक, उस इंस्टेंट तक जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगी। सो आई एम स्केचिंग दैट कंडीशन ऑफ द इंस्टेंट ऑफ द मैक्सिमम कंप्रेशन, एक्स मैक्स लिख रहा हूं। तो उस इंस्टेंट पे क्या होगा कि ये जो दोनों ब्लॉक्स हैं, ये दोनों इस कदर चिपके हुए से होंगे कि दोनों की जो स्पीड आनी है
क्या आनी है, दोनों की जो स्पीड आनी है वो क्या आनी है, सेम आनी है. So both of them will be having the same speed, and that speed we assume as v. And compression over there is supposed to be maximized. That's the instant which we are interested in. लिखा भी हुआ है, if on collision the two bodies stick together, and you know that when the bodies stick together, तो हम क्या करते हैं, perfectly inelastic collision का क्वेश्चन लेते हैं. तो क्वेश्चन में एम्पल हिंट है. ये लैंग्वेज नहीं भी होगी अगर किसी क्वेश्चन में, तो भी आप ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब यही होता है, द मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, एंड दैट मींस दे आर स्टिक्ड टू ईच अदर. ओके डन सर. तो सीएलएम लगाते. सो इनिशियल मोमेंटम इसका है, उसका मास कितना है देख लो, ये 2 kg है और ये वाला 5 किलो का है. ठीक है. सो इनिशियल मोमेंटम हो गया 2 × 10. सेकेंड वाला का हो गया एज 5 × 3, और फाइनली दोनों चिपक गए. सो 2 + 5 इंटू कॉमन स्पीड भी. ठीक है. कॉमन वेलोसिटी का क्वेश्चन हो गया, जैसे परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन का क्वेश्चन अपन करते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से हो गया. राइट. सो इट्स डन सर, इट्स वेरी इजी सर. सो दैट्स 20 + 15 कितना हो गया, 35 is equal to 7 × v. So the value for the v become 35/7 as 5 meters per second. That's the value. Check कौन कर लो, 20 + 15 35 and by 7 5 meter per second is a common speed over there. Now what to do? एनर्जी अप्लाई करो. एनर्जी हो रही ना ट्रांसफॉर्म. अब कुछ एनर्जी किसमें चली गई, डिफॉर्मेशन में, मतलब पोटेंशियल एनर्जी में स्प्रिंग की, और बाकी काइनेटिक की फॉर्म में है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अभी भी है. सो लेट्स अप्लाई द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन देम. सो इनिशियल कितनी है, हाफ इंटू m1, मतलब कितना मास है इसका, 2 × 10², एंड प्लस हाफ इंटू सेकेंड वाले की 5 × 3². ये इनिशियल है. फाइनली स्टेज पे इनकी काइनेटिक होगी हाफ इंटू 2 + 5 एंड इंटू कॉमन स्पीड स्क्वायर, दैट इज 5². ये आ गई आपकी इस समय पे काइनेटिक, और बाकी किस फॉर्म में है, दैट इज पोटेंशियल. और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग कितनी होती है, हाफ kx². k की वैल्यू हमें गिवन है 1120, ये रही 1120, एंड इनटू x max square. We are interested to find out the value for the x max. So let's evaluate and get to the result. Half and half gets cancelled. We get 200 over here, and plus 9 5 45 as equal to, I think something can also cancel out. That's 25 × 7. That's 25 × 7. So 25 × 7 stands as 175. 175 and plus 1120 x max square. So looking into the calculation, 200 and minus of 175 will be 25, and 25 and 45 will be 70. So that's 70 equal to 1120 x max square. Now 10 and 10 gets cancelled. So the x max square over there, that becomes 7/112. Let's think that it cancels, that is 717, and 16 7 is 112. Correct. So I think we are with a good luck that x max becomes equal to 1/4, and 1/4 becomes 0.25, and everything is in a SI MKS system, so that becomes 0.25 meter, or we can say 25 centimeter is supposed to be a result for the question. And we have understood the question, and a very well note that what happened entire question, the keyword the maximum compression, or maximum compression का मतलब the blocks will be in a state when they are sticked to each other and the velocity seems to be common, right? So this is a good idea to solve in a question. आगे बढ़ते हैं and look into the next one. And the next one is like the bullet problem and a hanging block problem, where this is a block which is hanging, and then we have a bullet which is going to come and embed into it. रुकते हैं, देखते हैं सर, एम्बेडिंग वाला क्वेश्चन तो करा है. तो इसमें क्या है, इसमें क्या हो रहा है कि ब्लॉक का मास जो है वो तो कैपिटल M है, ठीक है, और जो बुलेट का मास है दैट इज स्मॉल m, और उसकी स्पीड कितनी है v के बराबर. और हो क्या रहा है, जब वो ब्लॉक्स के साथ में इंटरैक्ट करेगी तो उससे बाहर निकल जाती है, ब्लॉक को चीर के बाहर निकल जाती है. सो द बुलेट basically comes out of it. It comes out of it with a speed of v/2. कितनी स्पीड से, v/2 से बाहर आ जाती है,
तो इसका मोमेंटम कम हो जाता है क्योंकि इसका मोमेंटम स्मॉल m इंटू वी था, अब इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा स्मॉल m इंटू वी बाई टू, इसका मतलब मोमेंटम हैज बीन ट्रांसफर्ड टू दिस, द मोमेंटम हैज बीन ट्रांसफर्ड टू दिस। तो क्या होगा उस इंस्टेंट पे इसको कोई स्पीड मिल जाएगी, उस स्पीड को v नॉट लिख लेते हैं। अब ये स्पीड कितनी होगी वो अपने को CLM से मिल जाएगी, और क्वेश्चन कह रहा है देयर इज नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, कोई लॉस नहीं हो रहा है और किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी में नहीं गया है, कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रही है। फिलहाल तो CLM लगा लें, कोई और भी फोर्स तो है नहीं इस डायरेक्शन में है, टेंशन है, पर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो इस डायरेक्शन में CLM लगा लेते हैं। इनिशियल मोमेंटम कितना है m इंटू वी, आगे इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू वी नॉट एंड प्लस स्मॉल m इंटू वी बाई टू। इनिशियल मोमेंटम किसका, बुलेट का, ब्लॉक तो रेस्ट पे था, फाइनल मोमेंटम दोनों का आ गया। ये तो पता था हमें, क्वेश्चन ने गिवन है कि ब्लॉक की स्पीड निकालो, ये बोला तो नहीं है क्वेश्चन ने, पर हमने निकाली है। बुलेट की स्पीड कितनी होगी, आधी होगी, v बाई टू होगी। सो इसमें से इसको माइनस करो तो mv बाई टू इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू वी नॉट। तो अपने को जो चाहिए था मिल गया, v नॉट की वैल्यू मिल गई स्मॉल m बाई कैपिटल M इंटू वी बाई टू। इसका मतलब दैट्स द स्पीड ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक इमीडिएटली आफ्टर कॉलिजन, इमीडिएटली। अब बुलेट तो गई, अब जो गया तो उसके बारे में क्या दुख मनाना, क्या सुख मनाना, वो तो गया। अब क्वेश्चन किसका, क्वेश्चन इज व्हाट इज ब्लॉक, व्हाट इज अ ब्लॉक डूइंग फ्रॉम नाउ, इट इज गोइंग टू मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो क्या होगा, जितना मोमेंटम उसके हिसाब से वो जाएगा, इसका मोमेंटम उतने हिसाब से हो जाएगा, और कोई मैक्सिमम हाइट आ जाएगी उसके, और यहां पे इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या होगा, जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कितनी हाइट पे जाएगी वो निकाल दो, फाइंड द वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर एज। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि कितनी की, हाफ mv नॉट स्क्वायर। बुलेट नहीं है उसके अंदर एम्बेडेड, बुलेट तो गई अपने रास्ते, भाग गई, तो यही ऊपर गया अकेले, आइसोलेटेड, अकेले। कितनी हाइट पे, h हाइट पे। तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। होल ऑफ द, स्लो बोलो सर, द होल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, और उससे अपने को h max मिल जाएगा। सो विल गेट द वैल्यू फॉर h max over there, capital M gets cancelled, so the value for that h max should come out to be v naught square upon twice of g. Look into the question, it says what height the block is going to rise. That means of course it is asking the value for the maximum height. So question is over, v naught की value place कर दो, इसको square कर दो, तो small m square upon capital M square into v square upon 4 एंड ट्वाइस ऑफ जी पहले से है, तो नीचे आपका फैक्टर जो हो गया दैट बिकम्स एज, ये वी नॉट स्क्वायर है एंड नहीं वी स्क्वायर ही है, दैट्स वी स्क्वायर इटसेल्फ, वी है, वी नॉट नहीं है। एक सेकेंड, ये वी नॉट नहीं है, दैट्स वी इटसेल्फ। सो द फाइनल रिजल्ट कम्स आउट टू बी एज दिस डिवाइडेड बाय 8 and g and capital M square. Hopefully there will be option, बिल्कुल होगी, and 8 की एक ही option है B part that fits in as our result, right? So this is modification of the question जिसके अंदर बुलेट ब्लॉक में एम्बेड कर जाती है, उसका बस एक मॉडिफाइड क्वेश्चन है, right? Okay, आगे बढ़ते हैं and bring upon this ग्राफ क्वेश्चन में हमने देखे हैं कि जो पेपर्स होते हैं उसके अंदर एक आधा क्वेश्चन जरूर ग्राफ का होता है, और ग्राफ का मतलब ये नहीं कि खाली सर 1D से ग्राफ आएगा, हर चैप्टर में ग्राफिकल क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर भी हैं। तो शायद हमने ग्राफ बना रखे हैं लेक्चर्स में, तो हमें इसको क्रैक डाउन करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है। आई जस्ट डू रिमेंबर कि हमने ऐसा करा था कि ये बॉल्स कॉन्टैक्ट में आएंगी एंड देन दे गेट डिफॉर्म्ड एंड देन दे रिकवर एंड मूव, राइट? दिस बेसिकली हैपेंस। एक स्टेज और होती है, मतलब हम फोर्थ स्टेज भी बना सकते हैं, दैट इज जस्ट स्टार्ट रिकवरिंग and then finally they move separated, right? This is what the 5 stages, that is basically the 5 stages which we have worked upon in the question, right? These are the 5 stages which we have worked upon in the question,
एंड व्हाट हैपेंड कि ये वाली जो स्टेज होती है, ये स्टेज क्या होती है, डिफॉर्मेशन की। पहले बॉल्स क्या होंगी, डिफॉर्म होंगी, और उसके बाद क्या होंगी, रिकवर होंगी। ऐसा नहीं होता है कि जो भी हम पढ़े और वो बस टेक्स्ट में ही रह जाता है और आप बोले कि सर देखो बुक्स में तो नहीं था ऐसे, आपने करा दिया, एक्स्ट्रा तो नहीं करा दिया, ज्यादा तो नहीं करा दिया। वैसे मेरे बारे में थोड़ा सा फेमस हो जाता है कि सर थोड़ा ज्यादा करा देते हैं, एक्स्ट्रा करा देते हैं। तो बेटा नॉलेज देना तो अच्छी बात है, नॉलेज देना तो अच्छी बात है ना। आप रामायण पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे, तो देखो अर्जुन को ज्यादा विद्या आती थी कि नहीं आती थी, है ना, ज्यादा तीर विद्या आती थी। भीम को ज्यादा गदा चलाना आता था, ज्यादा आता था। तो उनके टीचर्स बहुत अच्छे थे, नहीं तो एक सारे लोग तीर धनुष की प्रिपरेशंस करते थे, तैयारियां करते थे, पर अर्जुन ऐसा कोई नहीं बन पाया। It will be everywhere. It will be everywhere. So we need to always do relatively better than nearby people, है ना, relatively better than। और वो कैसे कर पाओगे, जब आपके टीचर आपको रिलेटिवली ज्यादा पढ़ाएंगे। अगर आपके टीचर रिलेटिवली आपको ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, they will not teach you better, so then how will you grow? Then you will be one in the whole crowd. But you have the very right to rise from among the crowd, and that's what we aim at, relative behavior. So ये कोई ज्यादा लेवल कम लेवल नहीं होता है। नॉलेज इज वेरी वेरी की इंपॉर्टेंट। मार्क्स, ओ नो, नॉलेज इज प्राइम, नॉलेज इज प्राइम। ओके, सो देयर इज अ डिफॉर्मेशन, देयर इज अ रिकवरी। तो इसका हमने ग्राफ बनाया कि अगर इलास्टिक कोलिजन होगा, अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो पहले क्या होगा, पूरी डिफॉर्मेशन, और फिर वहां से क्या शुरू हो जाएगी, रिकवरी शुरू हो जाएगी, इस तरीके से, है ना, मतलब ऐसे और ऐसे रिकवरी शुरू हो जाएगी। सो ये वाला ग्राफ जो है वो सही हो जाएगा। ये तो पैराबोलिक से ग्राफ बन रहा है, तो हम तो श्योर नहीं है कि पैराबोलिक ग्राफ होगा। सो दिस इज व्हाट इन्फ्लेक्शन ग्राफ्स आर देयर, ये दोनों। तो ये कब बनता है, जब ये क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन है। कब बनता है, जब इलास्टिक कोलिजन है। अगर इनइलास्टिक होता है तो क्या होता है, वो इधर वाला पोर्शन कम हो जाएगा क्योंकि रिकवरी कम हो जाती है, और परफेक्टली इनइलास्टिक होता है तो फिर क्या होता है, ये वाला हिस्सा कंप्लीटली गायब हो जाता है और सिर्फ वो क्या हो जाएंगे, परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएंगे। कौन से ग्राफ होते हैं, एफटी ग्राफ होते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल उस तरीके से वो कह रहा है कि दो क्यूब्स है इक्वल मासेस के अंदर मूविंग ईच अदर स्मूथ सरफेस एंड टोटली इलास्टिक कोलिजन है, मतलब ग्राफ एक तो सिमेट्रिक बनेगा। अगर इनइलास्टिक कोलिजन होता तो फिर ग्राफ थोड़ा सा अनसिमेट्रिक बनता, इस प्रकार बनता कि ये रिकवरी का जो रीजन है वो कम आता और डिफॉर्मेशन का ज्यादा होता। ये इनइलास्टिक के लिए बनता है। अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि इलास्टिक है तो बराबर बनेगा, तो देखो ये वाला ग्राफ तो बिल्कुल नहीं बनेगा क्योंकि इसके अंदर ऐसा कुछ हो नहीं रहा, यूनिफॉर्म लाइन आ रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंपल्स का बिहेवियर चेंज हो रहा है, पहले डिफॉर्मेशन वाली इंपल्स होती है, फिर रिकवरी वाली होती है, और ये बिल्कुल नहीं बनेगा। दैट्स शोइंग अ स्ट्रेट लाइन बिहेवियर, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बिहेवियर है नहीं। डिफॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन द मेनी फैक्टर्स ओवर देयर, कारण अंदर से उनका स्ट्रक्चर बिहेवियर कैसा है, एंड सो लीनियर फंक्शन इमेजिन करना नहीं है। ये बिल्कुल नहीं बनेगा, ये वाला दोनों गलत हो गए, ये वाला नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो डिफॉर्मेशन है, मतलब जो स्लोप आ रही है उसकी, वो शो कर रहा है कि जो बिहेवियरल चेंजेस है वो खत्म हो गए हैं, ऐसा है नहीं। द स्लोप हैज टू बी इन फैक्ट ओवर देयर रीचिंग इनफाइनाइट, दैट मींस दैट द डिफॉर्मेशन इज एट इट्स पीक ओवर देयर। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफॉर्मेशन है वो पीक है। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये एग्जैक्टली कैसा होना चाहिए, एग्जैक्टली इट इज सपोज टू बी, वो ग्राफ नीचे बनाया हुआ है ना, वो साइन कन्वेंशन के हिसाब से, है ना। सो ग्राफ कैसा होना चाहिए, इट शुड बी मूविंग हियर एंड ओवर हियर लाइक दिस। ये रीजन जो है वो बहुत ही कम सा बनाया हुआ है, मतलब यू कैन स्केच दिस पर्टिकुलर रीजन स्लाइटली लाइक दिस, मतलब करेक्ट बिहेवियर इज सपोज टू बी लाइक दिस एंड लाइक दिस, दिस विल बी द ग्राफ। सो आउट ऑफ द बेस्ट दिस कम्स आउट एज अ डी पार्ट ओवर हियर, और कोई ग्राफ उसके साथ में इट गेट भी मैच अप नहीं कर पा रहा है, राइट। सो दैट्स व्हाट, इफ सपोज there were two options like this and this one, so this will be the better option because it is telling that perfect behavior and change from the impulse of the deformation to the impulse of the recovery suddenly. So that's a sudden transition from here to here, sudden. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब डिफॉर्मेशन कम होनी शुरू होगी सडनली, उससे पहले डिफॉर्म हो रहा था, अब रिकवरी शुरू हो गई है, राइट। दैट्स व्हाट अ ग्राफ शोज। आगे बढ़ते हैं एंड वी लुक एट द नेक्स्ट वन, एंड द नेक्स्ट वन इज अ वॉल प्रॉब्लम। व्हाट इज इट, इट्स अ वॉल प्रॉब्लम। अब एक यूजुअल क्वेश्चन क्या होता है, मतलब आए दिन जो क्वेश्चन हमें मिलता है, इजी क्वेश्चन क्या होता है
कि आपके पास एक दीवार है और आपने बॉल दी और इसको हिट करी और इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस इज गोइंग टू बाउंस बैक विद द स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड इफ इट इज सपोज टू बी इलास्टिक कोलिजन. इफ इट इज नॉट सो, इफ इट इज नॉट एन इलास्टिक कोलिजन, तो फिर क्या होगा, अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड से जा रही है तो यहाँ पे रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट होगा लेट्स से इक्वल टू हाफ. तो इसकी स्पीड जो होगी वो कितनी हो जाएगी, ई टाइम्स हो जाएगी, ई टाइम्स एन एक्सिस बनेगी यहाँ पे, ई टाइम्स हो जाएगी. सो हाफ इंटू 2 कितनी हो जाएगी, 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी. दिस विल बी द स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन एज्यूमिंग दैट अ बॉल, या फिर एक ग्राउंड पे भी कर सकते हो कि बॉल ग्राउंड पे गिराई है ना, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट से गिराई जो कि खुद मूव नहीं कर रहा है, मतलब उसका मास इतना जा रहा था कि वो मूव ही नहीं कर रहा था, और उस वजह से क्या होगा कि ये सिंपल रिबाउंड कर जाएगी और इसकी स्पीड ई टाइम्स आ जाएगी. ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बहुत डिटेल में कर चुके हैं. नाउ दिस क्वेश्चन हैज अ ट्विस्ट वेयर दिस heavy object, that is a wall, it's a heavy wall of course, but it is moving. It is moving, it's not stationary. सर हमारे घर की दीवारें तो नहीं चलती हैं, हमने तो नहीं देखा सर. अच्छा, कुछ रिलेटिव होता होगा सर, है ना, रिलेटिव होता होगा कि चल रही है दीवार. बेटा ऐसा कुछ नहीं है कि आपके घर की दीवार किसी और फ्रेम से चल रही है, हम ऐसे कोई बातें नहीं करें. ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी ट्रक की दीवार हो, ओपन ट्रक की दीवार हो, ऐसे भी तो हो सकता है ना, है ना, हो सकता ही नहीं हो सकता. या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो जिसके अंदर एक मूविंग वॉल आपने बना दी और मूविंग वॉल को मोटर से आपकी तरह मूव करा रहे हैं. सो ऐसा हो सकता है, ठीक है. तो ऐसा मत सोचिए कि आपके घर की दीवार है, ऐसा हमारे घर की दीवार है तो हिलती नहीं है, हम नहीं करेंगे क्वेश्चन, ऐसा मत सोचना. सो इट सेज दैट कोलिजन इज इलास्टिक. तो आपको ये तो पता है कि ई की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये तो हमें 100% पता है. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल आपको निकालनी है. आप बोलोगे सर क्वेश्चन को करने का तरीका है सीएलएम लगाओ. क्या लगाओ, सीएलएम. वेरी गुड. पर आप लगा नहीं सकते यहाँ पे. सर ये क्या बात हुई, आपने तो बोला था सीएलएम लगाना है क्वेश्चन में, तो बेटा फिर मैं प्रैक्टिस भी तो करा रहा हूं ना हर क्वेश्चन को. इसके अंदर आप कितना लगाओगे सीएलएम, यू कैन नॉट अप्लाई द सीएलएम रीजन बिकॉज़ द masses are not given and the second mass is infinite. second mass is infinite, so you cannot apply. और masses given भी नहीं है, पहले बॉल का मास गिवन ही नहीं है. बोलोगे सर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन. नो, such kind of the question cannot be solved by masses because one of the mass is comparatively very high. So then how to solve it? सर न्यूटन हेल्प करेंगे. कैसे, एनएनसी लगा के. So applied NNC वो क्या होता है, E is equal to V2 minus of V1 divided by U1 minus of U2. अब डिसाइड कर लो कि पहला कौन दूसरा कौन. सपोज ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है. अब दीवार के साथ क्या होगा, दीवार जैसे पहले थी वैसे ही होगी. अब आप दीवार को थप्पड़ मारो, घुसा मारो, कुछ भी मारो, क्या होगा, दीवार की स्पीड थोड़ी बदल जाएगी. आप उसके सामने मच्छरवाती हैं. यू आर वेरी स्मॉल, यू हैव नेग्लिजिबल इनर्शिया इन फ्रंट ऑफ द बॉल. सो your actions are not going to change the momentum of the ball. If the speed of the ball is not going to change, or there will be some negligible, so it will not get noticed. So which means the U2 and V2 is going to be same. It is not going to change because the inertia is so high, and the value should be equal to -1, not +1. -1. अगर ये +1 है, इसका मतलब U1 की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू +2. एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड, दैट इज V2. दैट्स नो V1 इज रिक्वायर्ड. बॉल की फाइनल स्पीड आपने बतानी है, दैट इज V1. दैट्स ऑल इज रिक्वायर्ड. इसमें डालो क्वेश्चन खत्म, ओवर एंड आउट. सो लेट्स फिनिश आउट. E की वैल्यू कितनी है 1 क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है. V2 कितना है -1 माइनस ऑफ V1 जो कि आपको कैलकुलेट करना है, दैट इज द फाइनल स्पीड ऑफ द बॉल एंड अपॉन U1 माइनस U2. तो U1 कितना है, दैट इज 2 प्लस ऑफ 2, इधर जा रही थी बॉल, एंड माइनस ऑफ U2, सो दैट्स माइनस ऑफ -1. वैसे भी नीचे ये ऐड ही होंगी ऑपोजिट डायरेक्शन में. 2 + 1 3 वही आ रहा है. सो दैट 3 × 1 3 इज इक्वल टू -1 माइनस ऑफ V1, दैट्स 4 इक्वल टू -V1 एंड देयरफॉर V1 बिकम्स -4 मीटर पर सेकेंड एज योर रिजल्ट. सो आंसर तो मिल गया, दैट्स -4 मीटर पर सेकेंड. करेक्ट है, इस तरफ आ रही है, पीछे की तरफ बिल्कुल सही आ रहा है. और देखो स्पीड ज्यादा हो गई, रीजन वॉल से एक्स्ट्रा मोमेंटम उसको मिला होगा इस डायरेक्शन में क्योंकि वो खुद ही मूव कर रही थी, एंड बिकॉज ऑफ विच इट गेट्स अ हायर स्पीड, राइट. एंड सीएलएम नहीं लगा सकते थे, लगा, ऐसा नहीं है कि सीएलएम अलाउड नहीं है, बिल्कुल लग सकता है, प्रेफरेबली डेटा हो तो, पर डेटा ही नहीं है ना मास्टर्स का, तो फिर अपन क्या करें. सो देन वी मस्ट स्किप ओवर ना. स्टेप्स है हमारे पास, पहला स्टेप नहीं लग रहा था, सेकंड पे जंप करो. ऐसे नहीं स्टक हो जाओ. किसी ने तो बोला था पहले सीएलएम लगाना है, अब हम सीधा कैसे पूरे, गलत हो जाएगा, सर के अगेंस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है.
है कि नहीं, है ना। तो हमने स्टेप्स बताए हैं, पर हो सकता है कि पहला स्टेप कभी ना लगे, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं लगा, तो सेकंड स्टेप पे जंप करके फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा जाता है। आगे बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन से हम क्या लेके जा रहे हैं कि वॉल अगर पहले रेस्ट पे थी तो बाद में भी रेस्ट पे रहेगी, और अगर वॉल की स्पीड जो पहले थी बाद में भी वैसे ही रहेगी, बदलेगी नहीं, सेम ग्राउंड का होगा। क्योंकि ग्राउंड रेस्ट पर है तो पहले भी और बाद में भी, और बाद में अगर उसकी कोई स्पीड है तो जितनी पहले होगी उतनी ही रहेगी, डायरेक्शन में भी वैल्यू में भी। आगे बढ़ते हैं। So let's see that what is the next question in store for us, and the next question over here is there are two blocks A and B, उसके बीच में स्प्रिंग है जो मुझे देख के समझ में आ रहा है, और आइडियल स्प्रिंग है, मासलेस है, और सब कुछ हॉरिजॉन्टल स्मूथलेस फ्लोर पर है। मतलब फिर से एक बार एक्सटर्नल फोर्स 0 है, लैंग्वेजेस हमें डिकोड हो जाती हैं, और ये फिर से कह रही है कि इट्स स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। इसका मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो आप CLM लगा सकते हैं, और यहाँ पे मासेस हैं गिवन है शायद, तो इसका मतलब CLM अच्छे से लग जाएगा। एंड थर्ड आइडेंटिकल ब्लॉक C, इसका भी मास m है, तो सारे mm है, और ये स्पीड v से मूव कर रहा है, और बता रहे हैं कि क्या होगा। हम ऑप्शन बाद में पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन में होगा क्या, पहले वो देख लेते हैं। तो ये ऐसे टकराएगा, ठीक है, ये ऐसे टकराएगा। हम तो क्रेडल ऑफ आसिड वैसे क्वेश्चन भी कर चुके हैं, और मैक्सिमम कंप्रेशन वाले क्वेश्चन भी कर चुके हैं, ठीक है। अब ये ऐसे टकराएगा तो क्या होगा, ये रेस्ट पर आ जाएगा, ये मूव करने लगेगा। मतलब द कंडीशन इज गोइंग टू बी कि जो C वाला ब्लॉक है वो रेस्ट पर आ जाएगा, और उसी इंस्टेंट पे जो A वाला ब्लॉक होगा उसको स्पीड मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, v मिल जाएगी। ये क्वेश्चन का फर्स्ट बेसिक हो गया, और उसके बाद क्वेश्चन जो है वो आगे मूव ऑन करेगा, क्वेश्चन आगे उसके अपॉन मूव ऑन करेगा, और फिर C जो है वो पिक्चर से बाहर हो जाएगा, उसका रोल खत्म हो जाएगा। स्पेशल अपीयरेंस थी उसकी, वो स्पेशल अपीयरेंस खत्म होती है, बस उसने क्या करा, आगे कहानी बता दी, जाओ बेटा आगे बढ़ो कहानी जीवन में। तो ये गया, पिक्चर से बाहर हो गया। A और B का क्वेश्चन है, और A और B के क्वेश्चन में क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, लेकिन साथ में स्प्रिंग फोर्स लगेगी, तो B भी आगे चलना शुरू हो जाएगा, तो इस वाले की स्पीड कम होनी शुरू हो जाएगी, है ना। और एक स्टेज आएगी जब ये स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस हो जाएगी, और वो स्टेज क्या होती है, जब इन दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो क्या कंडीशन आएगी फॉर द मैक्सिमम कंप्रेशन, अभी हमने पीछे ही सवाल करा है इसका। तो इसका मतलब उस इंस्टेंट पे क्या होगा, ये जो दोनों है इसकी जो स्पीड होगी वो कॉमन हो जाएगी, उस कॉमन स्पीड को हम V0 बोल देंगे, और उस समय जो कंप्रेशन होगी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी। और इसमें C तो पिक्चर में है ही नहीं, क्योंकि C तो बेचारा रेस्ट पर आ चुका है, बस इसको किक स्टार्ट करके चला गया, और फिर क्वेश्चन A और B का है। अब पढ़ते हैं ऑप्शन की क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ऐसे सवाल में यही क्वेश्चन पूछा रहेगा बेसिकली। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द AB सिस्टम एंड मैक्सिमम कंप्रेशन इज 0। अब देखो ये क्वेश्चन के ऑप्शन के पीछे रीजन क्या है, पहले वो पकड़ता है। तो उसका रीजन बेसिकली क्या है मैं बताता हूं, कि जब ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें ये दीवार हो, और फिर यहां पे ये जैसा ब्लॉक रखा हो, और यहां पर ये स्प्रिंग हो, और फिर यहां से ब्लॉक आ रहा हो विद द पर्टिकुलर स्पीड। अब क्या होगा, क्योंकि यहां पे ब्लॉक है, तो फिर क्या होगा कि जब ये पूरा इसको कंप्रेस करेगा तो इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी। ये तब होगा जब ये कंस्ट्रेंट है कि यहां पे क्या है, यहां पे दीवार है, फिर ऐसा होगा। तो इसी आइडिया पे कि आपके दिमाग में जैसे वो वाला क्वेश्चन हो गई है ना, या फिर ये ब्लॉक भी ना होता और सिंपल दीवार होती तो भी फिर ये होता। ऐसा क्वेश्चन हमने करा हुआ है कि व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन, तो क्या होगा, सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें हो जाएगी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगी, है ना। तो ये उस बेसिक का क्वेश्चन हुआ। क्या हुआ, ये उस बेसिक का क्वेश्चन हुआ। तब ध्यान रखिएगा कि ये वो वाला क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है। मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब कि दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कॉमन स्पीड हो जाएगी। तो 0 तो बिल्कुल नहीं होगी, तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, गायब हो गया। अब कह रहे हैं कि अगर 0 नहीं है तो फिर क्या है वो बताओ, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो बताओ, वो निकाल लेते हैं। पहले लगाते हैं CLM यहां से, तो इनिशियल मोमेंटम हो गया m इंटू वी प्लस 0, क्योंकि ये तो रुका हुआ था। बाद में हो गया m प्लस m, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं, इंटू V0, तो उससे आपको V0 की वैल्यू मिल जाती है, दैट इज इक्वल टू V अपॉन 2, क्योंकि 2m हो जाएगा, m और m कैंसिल हो जाएगा, V0 बाई 2 हो गया, हाफ हाफ हो गई। और फिर चेक करते हैं कि
काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी उस समय, तो इस समय जितनी काइनेटिक एनर्जी है इन दिस कंडीशन, काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिख लेते हैं, सो हाफ इंटू एम प्लस एम एन इंटू वी नॉट स्क्वायर, सो दैट्स हाफ इंटू 2m, ठीक है, और वी नॉट कितना है v/2, तो उसका स्क्वायर, सो v स्क्वायर बाय 4, तो ये 2 कैंसिल है, so that becomes mv square by 4, that is a value for the kinetic energy at this instant, at the instant of the maximum compression। तो बिल्कुल सही ऑप्शन आ रही है कि काइनेटिक एनर्जी उस समय कितनी है, mv स्क्वायर बाय 4 है। पहले कितनी थी, हाफ mv स्क्वायर, किसकी, a की, c तो पिक्चर से बाहर है, a की कितनी थी, हाफ mv स्क्वायर, तो लॉस हो गई, लॉस हो गई, और वो किसको मिलेगी, स्प्रिंग सिस्टम को, तो स्प्रिंग को मिल जाएगी। तो होगा क्या, दैट इज हाफ ऑफ mv स्क्वायर इनिशियल एनर्जी थी, तब तो स्प्रिंग कंप्रेस नहीं थी, रिलैक्स थी। बाद में क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/4 ऑफ mv स्क्वायर, और बाकी किसमें चली गई, दैट इज इन द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, दैट बिकम्स हाफ ऑफ kx स्क्वायर, और x क्या हो जाएगा उस समय, मैक्सिमम। सिंपल, ये क्वेश्चन आपकी आपकी एनर्जी की, और सब कुछ इलास्टिक कोलिजन है, एनर्जी का लॉस वॉस है नहीं, फ्लोर भी स्मूथ है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं, कोई फ्रिक्शन के अगेंस्ट कोई वर्क डन नहीं हुआ है ना, तो कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ, तो एनर्जी कंजर्व्ड है। तो इसमें से ये माइनस करें, हाफ माइनस 4, हाफ माइनस 1/4 कितना होगा, 1/4, सो 1/4 mv स्क्वायर, दैट बिकम्स हाफ ऑफ k इंटू एक्स मैक्स स्क्वायर, है ना। अब ये 2 और कैंसिल हो गया, सो दैट इज m अपॉन 2k इंटू v स्क्वायर इज इक्वल टू x max स्क्वायर, so therefore the value for the x max finally, x maximum should be as root of m upon 2k and into v is the value for the x max। और उसके हिसाब से सी ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें 2 का फैक्टर नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, that's m upon 2k, so d becomes our option and the question is done। once again question modified, पहले भी क्वेश्चन करा हमने ऐसा, पर इस बार 3 ब्लॉक्स ले आए, पर क्वेश्चन का बेसिक नहीं बदला कि जो मैक्सिमम कंप्रेशन होती है उस समय पे क्या होता है, दोनों पार्टिकल्स की स्पीड जो होती है वो सेम हो जाती है। सो ये कॉन्सेप्ट अब शायद हमें प्रॉपर्ली याद रहेगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, इट सेज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द 2 बॉल्स इज 2:1, मतलब जो पहली वाली बॉल है उसका मास आप 2m रख सकते हो, तो दूसरी वाली जो बॉल है उसका मास क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक है। एंड बिफोर कॉलिजन द रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज इज 1:2, इसका मतलब अगर इसकी स्पीड आप u रखोगे तो इसकी स्पीड आपकी ट्वाइस ऑफ u हो जाएगी, ऐसा हो गया। और दे आर मूविंग इन म्यूचुअली ऑपोजिट डायरेक्शन, तो डायरेक्शन बदल देते हैं, तो ये जो है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सो इट्स मूविंग लाइक दिस, राइट, ये कंडीशन आ गई। एंड दिस इज व्हाट द क्वेश्चन बिहेवियर इज लाइक दिस, दैट दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड लाइक दिस विद द स्पीड्स, ओके। तो m1 पता है, m2 पता है, u1 पता है, u2 पता है। आफ्टर कॉलिजन ईच बॉल मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द इनिशियल डायरेक्शन, ओके, एंड मतलब ये इधर जाएगी और ये इधर जाएगी, ये फाइनली बोला हुआ है, मतलब जो 2m वाली बॉल है वो इधर जा रही होगी, इसकी स्पीड को v1 रख लेता है, और m जो है वो इधर जा रही होगी, उसकी स्पीड को v2 रख लेता है। तो e की वैल्यू भी आपको गिवन है, e वैल्यू कितनी है, 5/6 है। सो फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द ईच बॉल बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन, मतलब v1 अपॉन u पूछा हुआ है कितना होगा, क्योंकि v1 अपॉन u1 पूछा है, u1 u है, और v2 अपॉन ट्वाइस ऑफ u कितना होगा, ये आपसे बेसिकली बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन ये पूछा हुआ है, तो चेक कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। सो लेट्स चेक अपॉन दिस वैल्यू, v1 निकाल लेते हैं, तो एक्सप्रेशन जो v1 का होता है दैट्स इक्वल टू m1 माइनस em2, आप नहीं तो फॉर्मूला नहीं यूज करना चाहते तो आप एनएलसी लगा सकते हो, सीएलएम लगा सकते हो, दोनों इक्वेशन को मिलकर सॉल्व कर सकते हो, अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 एंड प्लस दैट इज m2 इंटू 1 प्लस e अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2, ये v1 है। इसी तरीके से आप v2 को भी चेक कर सकते हो, मैं v1 चेक करके दिखा देता हूँ, उसी तरीके से आप v2 को चेक कर लोगे, है ना, एक चेक कर लेते हैं हम। सो द v1 बिकम्स इक्वल टू m1 की वैल्यू देख लो कितनी है, 2m आ रही है, और माइनस e गिवन है 5/6, सो माइनस 5/6 इंटू m2 की वैल्यू m के बराबर है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, सो दैट्स 2m प्लस m, एंड इंटू u1 की वैल्यू u के बराबर है। सो प्रीटी सिंपल है कि आपने आपको रिजल्ट याद है अगर,
नहीं याद है तो मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना पड़ेगा, फिर CLM लगाना पड़ेगा आपको और साथ में NLC लगाना पड़ेगा, फिर 2 इक्वेशन बन जाएगी, आप उसको सॉल्व करेंगे, V1 और V2 की वैल्यू आ जाएगी। सो उसमें भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप उससे भी ट्राई कर सकते हैं, यू कैन जस्ट वाइल प्रैक्टिसिंग आप उससे भी ट्राई कर लेना। प्लस M2 की वैल्यू कितनी है, दैट इज M इंटू 1 प्लस E, सो दैट इज 1 प्लस 5/6, और U2 की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस ऑफ U, एंड डिवाइडेड बाय दैट्स 2M प्लस M, राइट। सो ये M वाला मामला तो सारा खत्म ही हो जाएगा। सो दिस सीम्स टू बी 2 इंटू U एंड माइनस 5/6 of U, and plus from here that's 2 of U, and plus of ये माइनस होगा, प्लस नहीं होगा, माइनस ऑफ 2U होगा, क्योंकि जो सेकंड वाली बॉल है दैट्स मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ गलती कर सकते थे, मैं भी बच गया, बस जस्ट बच गया, नहीं तो मेरा क्वेश्चन का आंसर अभी गड़बड़ा जाता। तो ये माइनस हो गया है, सो दैट्स माइनस ऑफ 2U, करेक्ट, क्योंकि ये माइनस है क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एंड माइनस ऑफ 2 इंटू 5, so that becomes minus of 10U/6 and divided by that's 3, 2 plus 1 3। ये है, अब इसको एड अप कर लो, देख लेते हैं कि क्या बन रहा है हमारा। सो ये 2U कैंसिल आउट हो जाता है, एंड दैट्स -5 -10 -15 आ जाएगा, सो दैट्स -15/6 इंटू U, और नीचे 3 है, सो 3 ये 5 हो गया, सो दैट बिकम्स -5/6 इंटू U, एंड सो आई प्लेस इट ओवर हियर as V1/U, ये V1 की वैल्यू मिली है, so but pretty clear है, that is V1/U, that becomes minus of 5/6, that's V1/U, that's -5/6। तो माइनस साइन क्वेश्चन ने बता दिया that the ball is going to move in the opposite direction, पहले बता दिया। so मैग्नीट्यूड में रेशियो कितना आ गया, 5/6, so that's A part, that beautifully fits set। आप सेकंड भी चेक करके देखेंगे, सेम आ जाएगा, वो मैंने करके देखा हुआ है तो इसलिए बता रहा हूँ, आप चेक कर लेना, वीडियो भी सेम रिजल्ट आ जाएगा, एंड सो इट वर्क्स एज वेल आंसर। और जो सेमी इलास्टिक कोलिजन होता है उसका भी क्वेश्चन आता है, और इस तरीके से इस रिजल्ट को यूज भी करना होता है, ये भी मैंने आपको सिखा दिया है। कई बार हमें लगता है कि यार बेफिजुल में हमने फॉर्मूले करे, बेफिजुल में हमने रिजल्ट करे, कोई ऐसा क्वेश्चन आता तो है नहीं, ज्यादातर इलास्टिक का आता है, ऐसा कुछ ही नहीं होता, ये आपके दिमाग का भ्रम है। कभी भी क्वेश्चन किसी भी कॉर्नर से कहीं से भी आ सकता है, जिसको हम अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मानते हैं, वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट। So let's look at another one where it says when a body moving with a certain velocity, when a body which is moving with a certain velocity collides with another body of the same mass at rest, the collision being perfectly elastic, head-on collision, 100% of the kinetic energy is transferred। बिल्कुल सही है, इलास्टिक collision है, 1D है, जिसके अंदर जो टारगेट है वो रेस्ट पर है, तो क्या होता है पोस्ट collision, if it is A and this is B, so A वाली बॉल जो है वो रेस्ट पर आ जाती है इंस्टेंटली, और B वाली बॉल जो है वो सेम स्पीड से मूव करने लगती है। इसका मतलब ये कहानी बिल्कुल सही है, और 100% काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफर होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही आ रही है। रीजन देख लेते हैं, बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी का कंजर्व। यहां पे क्वेश्चन गड़बड़ कर गया, हमें फर्स्ट लुक में फिर से लगेगा कि ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पर डेप्थ नॉलेज से जो कि हमने क्लासेस में एक्वायर करी है, हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होती है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली और फाइनली सेम होती है, कंजर्व्ड कभी नहीं होती है, क्योंकि वो पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है, फिर वहां से रिकवर करती है। सो द रीजनिंग सीम्स टू बी रॉन्ग, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड द सेकंड इज फॉल्स, so the C option is perfectly correct as an option, right? So concept also delivers us the marks, तो ये conceptual question है, marks हमें मिल गए हैं। and the next one for us where it says a particle is moving with a kinetic energy equal to 3 joules, तो kinetic energy हमें जो given है that's half m u square, that is u square is equal to 3, ये given है हमें, makes an elastic head-on collision with a stationary particle, तो इसका कॉलिजन इसके साथ हो रहा है which has twice its mass, इसका मतलब इसका मास m है और इसका मास 2m है और इसकी स्पीड कुछ u होगी, ये इससे कोलाइड कर रहा है, जो कि सेकंड पार्टिकल स्टेशनरी है। The maximum elastic potential energy of the system will be equal to, ये पूछा हुआ है कि कितनी होगी, तो देखो मैक्सिमम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ये इलास्टिक कोलिजन है, इसका मतलब तब होगी जब बॉल्स मैक्सिमम डिफॉर्म्ड होंगी, और बॉल्स मैक्सिमम डिफॉर्म्ड कब होती हैं, व्हेन दे हैव द सेम स्पीड, है ना, एट द सेम स्पीड। इसका मतलब एक स्टेज आएगी जब ये दोनों बॉल्स डिफॉर्म्ड होंगी और मैक्सिमम डिफॉर्म्ड होंगी,
और उस समय इनकी जो स्पीड होगी वो सेम होगी, और वो जो स्पीड है हम उसको v रख लेते हैं. दैट्स द इंस्टेंट ऑफ द मैक्सिमम डिफॉर्मेशन. दिस इज ऑफ द मैक्सिमम डिफॉर्मेशन. ये स्टेज है और उस समय उनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ये पूछनी है. तो डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी से वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी. तो इस समय कितनी काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज हाफ mu स्क्वायर, और दूसरे वाले की कितनी है, 0 है. ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है. और फाइनल कितनी होगी वो आपको चेक करनी पड़ेगी. उसके लिए पहले और दूसरे के लिए हाफ इंटू एम प्लस 2m एंड इंटू वी स्क्वायर आएगा. ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी. लेकिन वो v कहां से आएगा पता है आपको. दिस आइडिया विल कम फ्रॉम CLM, क्योंकि सबसे पहले तो आपको क्या लगाते हैं, CLM. सो इफ यू अप्लाई द CLM, सो व्हाट डू वी गेट बाय द CLM. इनिशियल मोमेंटम कितना है, दैट इज m इंटू u. सेकेंड पार्टिकल का 0 है. फाइनली दोनों चिपक गए हैं, क्योंकि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन वाली कंडीशन क्या होती है, जिसके अंदर पार्टिकल स्टिक ऑन कर चुके होते हैं. एंड इनटू v स्क्वायर. सो v इज नॉट v स्क्वायर, दैट्स v ओवर हियर. तो इससे आपको v की वैल्यू मिल जाती है. द वैल्यू फॉर द v ओवर हियर इज, ये 3m हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा. दैट्स m into u equal to 3m into v. m gets cancelled as you can see. So v becomes equal to u by 3. ये फाइनल स्पीड आ जाएगी at the instant when there is a maximum deformation. So I've seen that this idea of the maximum deformation comes out in many questions in a different formats, right? और हम deformation ज्यादातर सोचते हैं कि inelastic collision में होगी. This question actually tests our metal, tests our ideas, tests our concept, where it is said it is elastic collision and still there is a deformation. वो अलग बात है कि उसके बाद वो उसको recover कर जाता है पूरी तरीके से, और तभी जाके वो इलास्टिक कोलिजन बनता है. तो आपको बात समझ में आ गई है कि डिफॉर्मेशन का क्वेश्चन किसी भी तरीके के कोलिजन में आ सकता है, और कॉमन स्पीड हर तरीके के कोलिजन में आती है. हर तरीके के कोलिजन में आती है, वो अलग बात है. इलास्टिक कोलिजन में बाद में वो रिकवर करके अलग अलग हो जाते हैं. तो अब आप डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लो और उससे आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी. सो हाफ mu स्क्वायर विल बी, इस वैल्यू को चेक इन कर लो, दैट इज हाफ इंटू 3m एंड इंटू v स्क्वायर. v कितना है, दैट्स u by 3. इसका स्क्वायर ले लेते हैं. सो u स्क्वायर बाय 9, एक 3 का फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा. सो दैट इज हाफ mu स्क्वायर इंटू 1 by 3. ये बन गया. ये आपकी फाइनल आ गई, ये आपकी इनिशियल थी. सो इनिशियल कितनी है, हाफ mu स्क्वायर. फाइनल कितनी हो गई है, दैट इज 1 by 3 इंटू हाफ mu स्क्वायर. और डेफिनेट से बातें कम हो गई है, 1/3 रह गई है, और बाकी जितनी आ जाएगी दैट इज सपोज टू बी द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी. जो डिफॉर्मेशन वाली है वो आ जाएगी. दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. सो माइनस कर लो, 1 minus 1 by 3 कितना होगा, 2 by 3. सो 2 by 3 ऑफ हाफ mu स्क्वायर इज सपोज टू बी इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ओवर देयर. और हाफ mu स्क्वायर क्वेश्चन में पहले से गिवन है 3. इट वाज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 3. सो दैट्स 2 by 3 and into 3, so that 3 and 3 gets cancelled, so that become 2 joule as a value for the maximum potential energy as your result. There was a formula which we have calculated for maximum potential energy of deformation, and was as half m1 m2 upon m1 plus m2 into u1 minus u2 whole square. चेक कर लेते हैं इससे एक बार. that is half into एक मास m है, दूसरा 2m है, डिवाइडेड बाय m प्लस 2m. u1 कितना है, दैट्स u, और सेकेंड पार्टिकल रेस्ट पे था. सो ये 2 कैंसल आउट है एंड दैट बिकम्स m स्क्वायर अपॉन 3m. सो m by 3 हो जाएगा. सो दैट्स m by 3 एंड इनटू u स्क्वायर. दिस बिकम्स इन द रिजल्ट. ठीक है. नीचे भी हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 है. सो 2 कैंसिल हो गए. सो दैट्स m अपॉन नीचे 3 इंटू हाफ u स्क्वायर. अब mu स्क्वायर कितना है, mu स्क्वायर दैट बिकम 2 इंटू 3. यहाँ से m इंटू u स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3. सो दैट इज 2 इंटू 3 अपॉन 3. सो दैट 3 and 3 gets cancelled. You get answer 2 joule. So very easy way to also check on the question. मैंने क्वेश्चन का सार आपको बता दिया, समझा दिया, क्योंकि आपको कंफ्यूजन कहाँ होती है मैं बताता हूँ. आप बोलते हैं सर ये फॉर्मूला हमने लिखा था परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में, तो सर आप यहाँ कैसे यूज कर सकते हो जबकि वो इलास्टिक कोलिजन है. सो माय डियर, आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, इन ऑल द काइंड ऑफ कोलिजंस एक स्टेज आती है जब वो मैक्सिमम डिफॉर्म होते हैं. वो स्टेज सब में आती है, चाहे वो इलास्टिक है, चाहे इनइलास्टिक है, चाहे परफेक्टली इनइलास्टिक है, सब में वो स्टेज आती है जब वो मैक्सिमम डिफॉर्म होते हैं. उसके बाद उनके नेचर और सरफेस पे, नेचर और मटेरियल पे डिपेंड करता है
कि वो कितने इलास्टिक हैं, कि वो रिकवर करेंगे कि नहीं करेंगे, जहां से इंपल्स ऑफ रिकवरी जनरेट होता है कॉन्सेप्ट। और इलास्टिक कोलिजन होगा तो वो रिकवर कर जाते हैं, इनइलास्टिक होता है तो वो पार्शियली रिकवर करते हैं, और अगर वो परफेक्टली इनइलास्टिक होता है तो सदा के लिए क्या हो जाते हैं, एक दूसरे में चिपक जाते हैं, एम्बेड होकर रह जाते हैं। तो ये क्वेश्चन फिर से क्या था, मैक्सिमम एनर्जी निकालने का। तो मैक्सिमम एनर्जी मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल लगेगा जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन। अगर फिर भी आपको कोई संदेह हो सकता था, वो मैंने इसलिए आपको इस तरीके से करके दिखा दिया, और फॉर्मूले का उपयोग बिल्कुल आर्टिकल के एंड में करा, जिससे आपको समझ में आए कि यस this idea is actually what the sir is trying to explain to us. So we have come to the end of this particular unit of the collisions and this idea is completely over. और मैंने काफी लेक्चर्स लगाए, 6 लेक्चर्स लगाए इसके ऊपर। यूजुअली आप देखेंगे कि 1 या 2 लेक्चर्स में ये आर्टिकल खत्म कर दिया जाता है। So with me that's not the case, because I feel that you cannot attempt all the questions to yourself and I must be helping you in practicing these questions. So that's my series of the lectures which have ultimately made you analyze and complete these articles with you. There's what are the types of the collisions, which one, the head-on collisions, oblique collision, the elastic, inelastic, perfectly inelastic, and a qualitative idea of the super elastic collision also. हमने super elastic collision को भी qualitatively पढ़ा है, उसके ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। qualitatively हमने उसको पढ़ा है कि उसमें एक internal energy का boost मिल जाता है, जिससे बाद में स्पीड ज्यादा हो जाती है, right? And then we have read about the restitution coefficient and how it incorporates with the Newton's law of collision, and then how to solve the problems using NLC and CLM. And if the question moves on to another chapter, then we should have additional info, जैसे हमने वो आज देखा 4H और H वाला question. And the most important idea of the impulse of the recovery, impulse of the deformation, that's a very important aspects, the tangential normal acceleration and 2D collision को कैसे deal करना है 1D में break करके, all these ideas and numerous applications we saw in the various formats. In the 1D also numerous application, in 2D also numerous application, practical approach से भी देखा। So ये आर्टिकल यहाँ पे फिनिश होता है, आपका काम खत्म नहीं होता है, आपको क्वेश्चंस करने हैं, मॉड्यूल के भी असाइनमेंट जो दिए गए हैं वो भी करने हैं, you have to do all those questions, right? If you like this series of the videos, do recommend your friends to watch this particular series of the videos. आप भी खुद देखिए completely and do recommend your friends also to watch this particular series. Informative series है, एक कॉन्सेप्ट, एक आइडिया डेप्थ में डेल्टा अपॉन करा गया है, एक न्यूमेरिकल एस्पेक्ट इसमें डीलिंग करा गया है। ऑफ कोर्स द लेवल्स ऑफ द क्वेश्चंस कैन इंप्रूव अपॉन हियर आल्सो, इससे भी ज्यादा क्वेश्चंस के लेवल्स आ सकते हैं, आते भी हैं, ऐसा नहीं है, बट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द अप्रोच टू द क्वेश्चंस आई हैव डिड, try to did each and every corner of it. Now it's up to you to practice them and become a master. So okay, with this I'm gonna sign off for today. Bye, or hope you practice.